waiting for you at the perfect time. So all these skills can be, worked on, and this is not something which are God gifted. These are being implemented and can be used in our life by just practicing. You just need to know that key, and that key will be introduced by our speaker, Ms. Deepmala Singh. So, ma'am, over to you. Thank you so much, Tasneem. Thank you so much for inviting me. Also, thank you so much, Rajiv sir and Sage University. Greetings from my side. Thank you so much, sir. So I request Tasneem, there is an echo. Yes, now it's fine. There is still an echo. If you can work on that, please. Yeah, mute everybody. I believe you can mute me also. I'll just listen to Deepmala today. Thank you so much, sir. So, hi, this is Deepmala Singh, and I'll share my introduction with my screen share. Let me start with the session, because since this is a time management session and we should start by 3, but I think हम already थोड़े से 5-8 minute आगे चल रहे हैं. So I hope everybody can see my screen share. Is it visible to everyone? Yes, it's visible. Visible? Perfect? Yes, perfect. Great. So this is a time management session specially designed for Sage University students. So I hope इस session से आप लोग value लेकर जाएंगे. So please be alert. First पहले minute से लेके हम आखिरी 60 minutes का session होगा. आखिरी तक एक minute valuable है. Please be with me. There are a few instructions for all of you. इससे प्रॉपर पूरी वैल्यू मिले आपको, इसके लिए प्लीज एक नोटबुक या पेपर एंड पेन अपने पास जरूर रखें, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी एन एक्टिविटी बेस्ड सेशन. ये पूरा सेशन 60 मिनट का होगा. क्वेश्चंस अगर आपके मन में आएंगे, बहुत सारे आएंगे, पर अगर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को बीच में लेंगे तो सेशन डिले हो सकता है. सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, हम सारे क्वेश्चंस आप जो भी आ रहे हैं आपके मन में, आप लिखते जाइए, और अगर वो सेशन के एंड तक कंप्लीट नहीं होते हैं तो आखिरी के 10 मिनट हम सिर्फ आपके क्वेश्चंस लेंगे. ठीक है? अगर कोई भी टेक्निकल इशू आता है तो तस्नीम मैम इज देयर, शी इज द मॉडरेटर, शी विल टेक केयर ऑफ दैट. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स कि आपको क्या इशू आ रहा है. शी विल गाइड यू, बिकॉज आई विल बी टेकिंग द सेशन. वो वाला पार्ट मैं शायद हैंडल नहीं कर पाऊंगी. अगर तभी आपको कोई इशू आता है तो प्लीज लॉग इन अगेन. Another thing that I would like to share is, आप आखिरी तक इस सेशन में मेरे साथ बने रहिए. There is a special gift for you जो लास्ट में मैं आपको दूंगी. So please be with me. I need you all to be interactive and give me an answer to a very simple question कि आप इन तीनों जो पॉइंट्स मैं आपको बोलने वाली हूँ, इनमें से कोई भी चीज आप फील करते हैं क्या? Do you feel कि आपका वक्त आपके हाथ से रेत की तरह बहता चला जा रहा है? Do you have an answer to that? Yes or no? अगर आपको लगता है तो please unmute yourself and tell me, or you can also write in the chat box. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग. ये बहुत कॉमन इशू है, सबके साथ है, मुझे भी कई बार लगता है. ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन. सेकंड क्वेश्चन इज, डू यू थिंक कि आपके पास पढ़ने के लिए और दुनिया भर के बहुत सारे काम हैं, उनको करने के लिए वक्त ही नहीं है कि कंप्लीट हो पाए वो वर्क? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग. आई कैन सी निधि रिस्पॉन्डेड. एंड आपको कभी ऐसा लगता है कि बैलेंस ही नहीं बना पा रहे हैं अपने घर के लोगों के साथ, रिलेशनशिप्स में, हॉबीज में, पढ़ाई में, हर चीज में? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. थैंक यू. अगर आप में से किसी ने एक में भी यहाँ यस किया है ना, तो ये पूरा सेशन आपके लिए है. तो इसलिए गौर से देखिएगा इस पूरे सेशन को. So already Tasneem ma'am already shared about me. I am a certified life skills trainer, certified life coach, image consultant,
and I have been training in this industry since years. मैं कुछ women, there are some women, I also work to empower them through my personal coachings. मेरा एक YouTube चैनल भी है, मैं सेशन के लास्ट में उसका डिस्क्रिप्शन दूंगी. और मैं इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज आप थोड़ी देर के लिए अनम्यूट कर दें. जब मैं क्वेश्चन पूछूं प्लीज फिर से अभी म्यूट कर दें, फिर बाद में अनम्यूट कर लीजिएगा, है ना, बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ वॉइस. तो मैं कोचिंग ऑनलाइन भी कोचिंग्स कर रही हूँ, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भी. अनदर क्वेश्चन फॉर hello. So give me an answer now. Who wants greater success in life? And you can write down in the chat box if you want. I think chat, I can see it is disabled. I think Tasneem, chat is disabled. Yes, So chat. you can share a thumbs up. Thumbs up sign वहां पे दिख रहा है क्या सबको? Great, great. Samriddhi, Galaxy J6, I don't know who's that, but I can see your thumbs up. Ritu, I can see your thumbs up. And Anupriya, great, great. मैं सबको शायद ना देख पाऊं, but we are going good. ठीक है? So in the chat box, so you can put out your answers in chat box also. Wonderful. So if you want greater success and you have given an answer, yes, then let's move forward. Now my question to you is, don't tell me your age, keep it a secret to you, but आप Google पे जाएं, अगर आपका इंटरनेट वर्क कर रहा है तो there is an age calculator. आप Google पे जाएं या फिर इस लिंक को एग्जैक्टली टाइप करें और अपनी नोटबुक पे अपनी एज को लिखेंगे, ईयर्स में, मंथ में और डेज में. बाकी चीजें मत लिखिए, सिर्फ ईयर्स, मंथ्स और डेज में आप लिखिए कि आपकी एज क्या है. If someone is comfortable to share, वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं. I'm okay with that. कि आपकी एज क्या है. So if suppose your age is 25 years plus 6 months plus 5 days, इसके आगे तो फिर आपको अपना टाइम भी पता होना चाहिए, तब आप बता पाएंगे. Then now understand this fact कि ये जो आपकी एज की यूनिट है, ये सेम यूनिट हम यूज करते हैं अपने टाइम के यूनिट में. कितना वक्त हो गया? मुझे 5 दिन हो गए, मुझे 5 साल हो गए, 2 महीने हो गए किसी वर्क को किए हुए, या किसी चीज को करने में मुझे इतना वक्त लगेगा. ठीक है, सिंपल टर्म्स में. तो हमारी लाइफ की जो यूनिट है वो हमारी टाइम की यूनिट से मैच करती है. दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस सेशन इज टाइम मैनेजमेंट इज लाइफ मैनेजमेंट. अगर आपने अपने टाइम को मैनेज कर लिया प्रॉपरली, तो आपका लाइफ उतनी ही प्रॉपरली मैनेज्ड होगा. गेटिंग इट? So what we are going to learn right now is not just time management. We are going to learn how to manage your life. Now, write down an answer in the chat box, and अगर आपको नोटबुक में लिखना है, that's perfectly fine. I am waiting for your answer. How valuable your life is to you out of 10. आप 10 में से वैल्यू कितनी देना चाहते हैं अपनी लाइफ को? For me it is 10. For me it is 10. Is there anyone जिसके पास अपनी लाइफ की वैल्यू 10 से कम है? Is there anyone? Great. Sashi and Simran, answers are 10. So the value of your life is actually 10. आप highest value देना चाहेंगे because that is what is the most valuable thing for you. This is what I also shared earlier, जो हमने goal setting का session किया था, कि एक साल की वैल्यू समझनी हो अगर आपको, तो उस बच्चे से समझें जो उस 1 साल फेल हो गया हो. अगर 1 महीने का वैल्यू समझना हो, तो उस मदर से समझें जिनका बेबी 1 महीने पहले बॉर्न हो गया है.
ये पूरा बहुत सारे छोटे छोटे चीजें भी अगर आप समझेंगे, ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि 29 फरवरी में जो बॉर्न हुआ है उसे पता है कि मेरा बर्थडे 4 साल बाद आता है, सो दे वैल्यू द दैट सिंगल डे, उनके लिए वो बहुत जरूरी है। और अगर आप सेकंड्स या मिली सेकंड समझना चाहें तो मिली सेकंड पर हम आते हैं कि उसकी वैल्यू समझनी हो तो आस्क दैट स्पोर्ट्स पर्सन जो एक सिल्वर मेडल जीता है, गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया ओलंपिक्स में बिकॉज वो एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड से पीछे रह गया था। सो दैट्स हाउ वैल्यूएबल योर टाइम इज एंड दैट्स हाउ वैल्यूएबल योर लाइफ इज। गेटिंग इट? आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, अगर आप लोग अपना कैमरा ऑन कर सकेंगे मैं बहुत इंटरेक्टिव हो पाऊंगी। मुझे समृद्धि दिख रही है बहुत अच्छे से, थैंक यू सो मच समृद्धि। एंड एक स्टोरी है, ये कहीं और की स्टोरी नहीं, ये मेरी बनाई हुई स्टोरी है। मुझे स्टोरी सुनाने का बहुत शौक है, प्लीज इस स्टोरी को सुनिएगा। ये दोनों कैरेक्टर्स भी मेरे हैं। देयर वर टू पीपल, टू किड्स, दोनों भाई थे। एक केशु था और एक रोशु था। मैं जानना चाहूंगी आप केशु बनना चाहेंगे या रोशु, इसलिए ये स्टोरी आपको बता रही हूँ। बचपन से वो दोनों साथ रहते थे, पेरेंट्स एक ही थे, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है उन दोनों में, दोनों भाई बहुत मिलनसार हैं, साथ ही वो कॉलेज जाते हैं, साथ ही वो लोग पास आउट करते हैं। द ओनली डिफरेंस जो आता है वो है कि जब वो रियल लाइफ में एंटर करते हैं तो जो रोशु है, अब आई कॉल हिम रोशु बिकॉज ही इज ऑलवेज रोइंग, मतलब क्राइंग, ही इज ऑलवेज क्राइंग, सो दैट्स व्हाई ही इज रोशु फॉर मी, ठीक है। वो क्यों रोता रहता है? बिकॉज उसके पास टाइम कम है। वो कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास पैसे कम है, मेरे पास सक्सेस बहुत कम है, मेरे रिलेशनशिप्स बहुत क्वेश्चन पे रहते हैं अक्सर, और मेरी हेल्थ भी हमेशा एवरेज रहती है। ऑन द अदर हैंड देयर इज दिस अदर पर्सन, नेम आई नेम्ड हिम एज केशु। व्हाई केशु? अगेन वो कैश के ऊपर खेल रहा है, दैट्स व्हाई आई टर्म्ड हिम एज केशु। कि केशु जो है उसके पास हमेशा कैश है, अच्छा खासा टाइम है, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, सक्सेस है, रिलेशनशिप्स अच्छे हैं और हेल्थ है। जब सब कुछ सेम था बचपन में, सब कुछ, एजुकेशन भी सेम थी, एवरीथिंग वाज सिमिलर, व्हाट वेंट रॉन्ग बिटवीन दीज टू? The only difference was that the first person felt that he is lacking time, उसके पास किसी चीज के लिए वक्त नहीं है, और दूसरे पर्सन ने ये कंप्लेन कभी नहीं की, उसको ये पता ही नहीं चला ये वैक्यूम है उसके पास। He was always working towards his success. So now tell me, क्या इन दोनों में किसी के पास 24 घंटे से दिन में कम वक्त या 24 घंटे से ज्यादा वक्त है? No, ma'am. सबके पास No, इक्वल ma'am. है? किसी के पास 24 आवर्स से कम वक्त हो तो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकता है। No, ma'am. Right? Perfect. So each one of us are gifted with 24 hours each day. So मैं केशु का एग्जाम्पल और रोशु के एग्जाम्पल के साथ ही चलती हूँ। अगर रोशु को कोई पूछता है सिंपल सा क्वेश्चन, हाउ आर यू डूइंग या व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, उसका सिंपल आंसर होता है हमेशा से आई एम बिजी। और वो किस चीज में बिजी है उसे पता नहीं, आई एम ऑलवेज बिजी। तो अगर वो कहता है आई डोंट हैव टाइम, रियली? बाकी सबके पास भी तो 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। सो व्हेनेवर यू विल बी आस्क्ड कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, क्या आपका आंसर आई एम फाइन, आई एम गुड की जगह आई एम बिजी रहता है? या कोई पर्सन ऐसा है जो हमेशा कहता है आई एम बिजी? तो इट इज टाइम टू एनालाइज कि किस चीज में आप बिजी हो। आई एम डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, हमेशा क्या 24 घंटे आप समथिंग इम्पोर्टेंट कर रहे हो? क्या कोई एक और दिन नहीं है जो एक्स्ट्रा होगा जिसमें आप अपनी वैल्यूएबल कोई चीज कर रहे हो? The third is I am too busy doing something, पर कब तक करोगे? So whenever someone asks you, don't give an answer कि you lack time, because time मेरे पास भी उतना ही है, time आपके पास भी उतना ही है, ठीक है? And फिर क्या होता है कि सक्सेसफुल लोग अचीव कर लेते हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं कर पाते। इसे हम थोड़े आगे समझेंगे। एक और चीज जो मैं आपको टाइम की वैल्यू के लिए समझाना चाहूंगी,
अगर आपको 86,400 गोल्ड कॉइन्स एवरी डे मिलते हैं रोज, और ये 86,400 गोल्ड कॉइन्स के साथ इकलौती शर्त है कि ये जिस दिन मिलेंगे आपको, उस दिन रात के 12 बजे ये पूरे खत्म हो चुके होंगे। आपके पास जो भी पैसे आपको मिले हैं अगले दिन आप यूज नहीं कर सकते इसको। तो आप उसके साथ क्या करना चाहोगे? क्या उसको प्रिजर्व कर पाओगे आप? नहीं, आप उसे प्रिजर्व नहीं कर सकते। तो आपको उसको यूज ही करना पड़ेगा, खुद ही यूज करना पड़ेगा। अब उसे कैसे यूज करना है? ठीक है, सो every morning in reality you are actually getting 86,400 gold coins worth time. These are seconds. हर दिन आपको इतना seconds मिलते हैं, getting it? And आप उसके साथ क्या कर रहे हो? हर रात 12 बजे, हर पल आपका एक एक सेकंड खत्म हो रहा है, हर रात 12 बजे वो पूरा खत्म हो जाएगा। So a little too body, golden गिर रहे हैं coins, but ये जरूरी था इसलिए मैंने यहाँ डाला हुआ है। So what will you do with this money? That is really important for you to understand. This is similar to a Disney story. I think सबने सुनी होगी। एक डिज्नी प्रिंसेस है जो रात के 12 बजे जिसकी जो फेरी गॉड मदर होती है, उन्होंने उसको एक प्रिंस के पार्टी में जाने के लिए सारी चीजें चेंज की होती हैं, और उसके पास एक बग्घी होती है जो उन्होंने कद्दू से बनाई होती है। उनके पास एक जो हॉर्सेस होते हैं वो रैट से बनाए होते हैं, बट एक चीज बोली होती है, रात में 12 बजते ही ये वापस से पूरा का पूरा कद्दू बन जाएगा जो आपकी बग्घी है, जिसको ट्रैवल करने के लिए आप यूज कर रहे हो, और सारे हॉर्सेस वापस से रैट बन जाएंगे। तो 12 बजे से पहले आ जाना। सो आई एम यूजिंग द सेम स्टोरी टू टेल यू दैट वो शायद टाइम मैनेजमेंट के लिए ही वो स्टोरी लिखी गई होगी। इसीलिए उस स्टोरी को, जो भी स्टोरीज पसंद करते हैं, जरूर उस स्टोरी को फिर से याद करिएगा कि 12 बजे के बाद आपका अगला दिन शुरू होगा, 12 बजे सब कुछ फिनिश। Then what will you do with these? So we have 3 options what we can do with our time. Now मैंने यहाँ स्टार अगर किसी स्लाइड में बनाया है, that means it's a very important slide. You can take a screenshot of this slide. You can note it down, whatever you want to do with that. It is up to you. You are completely free for that. 3 चीज कर सकते हैं हम इस टाइम के साथ, या इवन हम पैसे के साथ भी 3 ही चीजें करते हैं। And that's why people say time is money. But मेरे हिसाब से time is more valuable than money. So either you use it, or you waste it, or you invest it. अब चलिए इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझते हैं। Using your time means कि जो रेगुलर लाइफ में हमारे साथ सारी चीजें हो रही हैं, कुछ भी जो भी हमारा रेगुलर लाइफ में हो रहा है, वो जैसे कि हम सोते हैं, हम उठ के अपना रेगुलर रूटीन लाइफ हम जो जीते हैं, that is using your time. ये हम रोज कर रहे हैं। Now what is wasting time? इसको थोड़ा गौर करिएगा। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसे थोड़ा ज्यादा उस टाइम को यूज करें उस काम को करने के लिए। Suppose your sleeping time need to be of 6 hours or 8 hours, जो भी आपकी बॉडी क्लॉक कहती है, और आप सोचते हैं नहीं मैं 10 घंटे सोऊंगा, so you are wasting the remaining 2 hours of your life. ऐसे ही अगर आप मोबाइल यूज करना चाहते हैं, मोबाइल को यूज करना इज यूजिंग टाइम। यूज करना मीन्स कि आप उसे जब कॉल करना है तो यूज कर रहे हैं, आपको इंटरनेट पे कुछ इंपॉर्टेंट सर्च करना है तो यूज कर रहे हैं, बट जब आपका वो काम 15 मिनट में हो सकता है और आप उसी चीज के लिए 45 मिनट to 1 hour लगा रहे हैं, दैट इज वेस्टिंग योर टाइम। तो हर एक चीज जो हमारे लिए बनाई गई है दुनिया में, वो सारी चीजें यूज करने के लिए बनाई गई हैं। वेस्टिंग हम खुद करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि हमें उसे एक्सेसिव यूज करना है, तो दैट इज वेस्टिंग योर टाइम। सो एनीथिंग दैट यू यूज एक्सेसिवली, दैट इज वेस्टेज। नाउ हाउ विल यू इन्वेस्ट योर टाइम? इन्वेस्टिंग क्या है फिर? मैंने अभी इससे पहले बताया आपको कि सारा वक्त तो रात में खत्म हो जाता है, फिर इन्वेस्ट कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है कि ये मैं अगर कहीं दे दूं तो इसका कुछ रिटर्न मुझे आज नहीं तो कल वापस मिल जाए। तो क्या मैं कहीं पे इस टाइम को रख सकती हूँ कि वो मुझे वापस मिल जाए? टाइम हो सकता है कि वापस नहीं मिले मुझे, पर टाइम की जो वैल्यू जो मैंने आज इन्वेस्ट किया है वो बहुत वैल्यूएबल होके मुझे आगे के टाइम वक्त में
किसी और का मिल जाए तो कैसा रहे, isn't it? तो इन्वेस्टमेंट मीन्स कि आज मैंने किसी रिश्ते में टाइम इन्वेस्ट किया या स्टडीज में टाइम इन्वेस्ट किया और ये मुझे एक ऐसा रिजल्ट दे दे कि कल को मेरा बहुत टाइम सेव होने लग जाए या मुझे उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होने लग जाएं लेटेस्ट स्टेजेस पे, 2 साल 5 साल या 3 महीने बाद भी कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे उससे मिलने लग जाए जो मैंने आज अपना टाइम इन्वेस्ट किया है. सो इन्वेस्टिंग योर टाइम इज इन योर एजुकेशन दैट यू ऑल आर डूइंग राइट नाउ. कुछ टाइम के बाद इस वक्त का इन्वेस्टमेंट का जब रिटर्न आएगा तो इट इज गोइंग टू बी योर सक्सेस in the form of your success. So that is investment of your time. Getting it? जो लोग हेल्थ पे कॉन्शियस हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एक्सरसाइज करने में so that उनके जो रिटर्न्स मिलते हैं उन्हें हेल्थ बेनिफिट्स में मिलते हैं. जो लोग रिश्तों में इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने वक्त को, उनको बाद में जब वो उनकी तबीयत खराब होती है, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो जिनके साथ उन्होंने रिश्तों में अपने इन्वेस्ट किया होता है टाइम, वो टाइम उनका वापस आता है. ठीक है, उस वक्त दे स्टार्ट हेल्पिंग यू आउट कि आपने मुझे उस वक्त हेल्प की थी, अब मैं आपकी हेल्प करता हूं. दिस इज हाउ रिलेशनशिप्स आर, राइट? सो आप इनमें से क्या चूज करना चाहते हैं, तीनों में से अपने वक्त के साथ करना, ये आप ही की चॉइस है. कंप्लीटली 100% आपकी चॉइस है. आप कुछ भी कर सकते हैं. यू आर फ्री टू डू दैट, बट यू विल नेवर बी फ्री फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉट एवर यू आर चूजिंग. आप अपने वक्त के साथ यूज कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर इसका रिजल्ट जो भी होगा वो आपके चॉइस पे ही डिपेंड करेगा. वॉट एवर यू आर गोइंग टू गेट इज डिपेंडेंट कंप्लीटली ऑन योर चॉइसेस. तो अब आपके लिए एक्सरसाइज है. 3 कॉलम्स बनाएंगे आप. ठीक है, मैं आपको 30 to 40 सेकेंड्स का वक्त दे रही हूँ, थोड़ा सा और चाहिए हो तो दे दूंगी. आप तीनों कॉलम्स बनाएंगे. इट इज अबाउट रेजिंग योर अवेयरनेस कि आप अपना टाइम कहाँ डाल रहे हैं. लास्ट कॉलम में यही रहेगा. यहाँ आप एजुकेशन भी डाल दीजिएगा 5th पॉइंट में, इन्वेस्टिंग टाइम में. फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने स्लीप एंड एक्सेसिव स्लीप का. आप यहाँ अपने खुद फिल करेंगे और कौन कौन सी चीज हैं जहां आप यूज करते हैं. एंड जैसे अगर कोई somebody takes 10 minutes to take a shower, 10 मिनट में कोई नहा लेता है, and then there are some people who take half an hour to 1 hour to take a shower daily. So that is the difference between using your time and wasting your time. If it is sufficient to take 10 hours, then give 10 minutes, then give 10 minutes only. If you think कि किसी दिन आपको 20 minutes देने, that's perfectly fine. But giving 1 hour or 45 minutes or 1 hour daily to take a bath, it is taking time from your it is taking your valuable time. तो इसीलिए अब आप लिस्ट बनाएंगे. मैं चैट बॉक्स आपका चेक कर रही हूँ. कोई जिसको लगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सी चीज आपकी यूजिंग है और वो वेस्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाती है. मोबाइल भी आएगा यहाँ पर. मैं एक एग्जांपल और दे रही हूँ कि आप मोबाइल यूज करते हैं 5 मिनट 10 मिनट की बात के लिए. 5 या 10 मिनट में आपकी सारी कंस्ट्रक्टिव बातें हो जाती हैं. उसके बाद जो बातें होती हैं उस पर गौर करना है कि क्या उसके बाद कंस्ट्रक्टिव बात हो रही है या फिर बस टाइम वेस्ट है. ठीक है. सो इज देयर एनीवन जो मुझे चैट बॉक्स में लिख के देगा ये चीज, 1-2 एग्जांपल्स और इनके अलावा प्लीज लिखिए. And there is a Google documents shared by Google form shared by Tasneem ma'am. Nisha, thank you so much. Thinking covert into overthinking. That's great. कि कोई थोड़ी बात को सोचना और सोचते ही रहना उसी बात पे बहुत ज्यादा. Great. Yes, ma'am. Wasting traveling. Tasneem, wasting traveling, I can't get it. सबका हो गया है तो you can also give me a thumbs up and so that we can move on. Wasting traveling, Tasneem, would you like to share a little bit? Yeah, I was just saying that wasting time means you are not doing anything constructive. So once you are traveling like spending more than 1 hour. So do you think that's also wasting of time?
If it is required, then of course हम उसको नहीं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स देखेंगे. जैसे अगर 1 hour आपको ट्रैवल करने में लगता है, फर्स्ट ऑप्शन इज क्या वो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं if it is a daily thing. So there are people who take their houses close to their workspace so that कि वो 1 hour जो ट्रैवल में जाता है वो डेली बेसिस पे जाता है, वो रिड्यूस हो जाए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. बट देर आर अदर पर्सपेक्टिव एज वेल कि अगर फैमिली के बाकी लोगों में, जैसे बच्चों को स्कूल जाना है, उन्हें चाहिए कि स्कूल पास में हो, तो दे प्रेफर कि स्कूल पास है तो उनके लिए हम उनके स्कूल के पास घर ले लेते हैं और हम चले जाएंगे ट्रैवल करके. ऑब्वियसली देयर विल बी टाइम कंस्ट्रेंट, बट हु कैन कॉम्प्रोमाइज इन दैट केस. अदर ऑप्शन इज आप दोनों चीजों के बीच में ले लो कि इधर भी हाफ एन आवर लगे, यहाँ भी हाफ एन आवर लगे. समटाइम्स इट इज वेरी डिफिकल्ट ट्रैवलिंग में कि हम उसको एडजस्ट कर पाए. So it certainly is a waste of time, but how we can utilize it, वो हमको थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा. कहाँ पे हम ट्रैवल में, हम अगर if we are driving ourselves, तो हम कुछ, मैं जो करती हूँ, if I am cooking or I am driving, मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी होती है, मैं पढ़ नहीं सकती, तो मैं कान में या तो कुछ ऑडियो बुक लगा लेती हूँ और and I start listening to audio books. This is what I do. तो मुझे लगता है यूटिलाइज हो गया मेरा टाइम. ठीक है. So another is wasting time by watching TV. That's great. Dhvanya, that's great. Because I never watch TV. जब भी मुझे entertainment चाहिए होता है, महीने में 1 या 2 movies बस देखती हूँ मैं, और उस वक्त फिनिश. कोई सीरीज नहीं देखती कि अगले दिन लगे कि उसे फिनिश करना है. I don't do that at all. मुझे आप एड्स पूछ लो, मुझे नहीं पता क्या होते हैं, मतलब एड्स कौन से आ रहे हैं, टीवी में कौन से सीरियल हैं. I don't know anything at all about it. Ritu, essentially sleeping into excessive sleeping, right? PUBG, Anuj, right? PUBG तो अब बैन हो गया, I think बहुत पहले, इसीलिए शायद बैन किया होगा कि इंडिया कंस्ट्रक्टिव हो जाए. And Jessica, gossip to tension. Exactly, gossip is also a wastage of time that I personally feel. Using phone into wasting time, right? Wasting time in gossip. Right. Komal, Nidhi, everyone, thank you so much for responding. Simran, Dhruv, great. So let me move forward now. एक चीज कि जब वो जो रोशु था वो अचीव नहीं कर पा रहा था, मैं वापस उस स्टोरी पे आ रही हूँ because I love telling stories, और there is a reason behind telling stories, because you may not remember me, but you will always remember Roshu and Keshu. That's why I always use stories. So failure to achieve, what is the reason behind the failure to achieve by Roshu? So it is not time, it is not lack of time, because time दोनों के पास equal था. The reason behind it was the lack of focus. He was unfocused, उसका focus ही नहीं था, वो सीधे जाना चाह रहा है रास्ते पर, तभी उसे एक लेफ्ट का टर्न मिलता है तो वो लेफ्ट मुड़ जाता है. कुछ मिल गया कि अरे यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वहां पे बैठ जाते हैं, आधा 1 घंटे 2 घंटे वहां बैठ गए. सो व्हाट हैपेंस इज कि आपका फोकस जिस जगह पर है, वहां पहुंचने से पहले इतने सारे ब्रेक लग रहे होते हैं कि यू स्टार्ट फीलिंग कि चलो ये बहुत सुंदर है, यहाँ थोड़ा रुक के देखते हैं, ये अच्छा प्लीजिंग लग रहा है, सो लेट मी जस्ट वेट देयर. एक चीज आप इसके लिए बहुत ध्यान रखो कि अगर आपका कोई फोकस आपने डिसाइड किया है, डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन अनलेस यू रीच दैट टारगेट. This is the most important thing to remember always, to save your time and to be successful faster than someone else. आप रास्ते में कहीं नहीं रुकोगे जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लो, unless it is very urgent and emergency kind of situation. So फेलियर टू अचीव का सेकंड रीजन है कि प्रायोरिटी ही डिसाइड नहीं है. आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं, आप चाहते क्या हो जिंदगी से, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, वो अगर डिसाइड नहीं है आपका, आपको पता भी नहीं है, तो और प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. एंड द थर्ड इज फेलियर टू प्लान. सपोज मैं भोपाल से इंदौर जाना चाहती हूँ एंड मुझे नहीं पता कैसे जाना है, अगर तो मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. आई विल हैव टू प्लान. आई वांट टू रीच इंदौर फ्रॉम भोपाल और आई वांट टू रीच दिल्ली फ्रॉम गुड़गांव. सो आई विल हैव टू डिसाइड कि मेरा मोड क्या होगा, ट्रैवलिंग का जरिया क्या होगा, रोड कौन सी लूंगी मैं और किस तरीके से वहां तक पहुंचना है. एंड फोकस विल बी कंप्लीटली ऑन
that particular destination. उसी तरीके से आप as a student, what is your focus? अगर आप किसी और फील्ड में हैं तो what is your focus? What do you want to achieve? दो मैं आपका इसके लिए भी आंसर्स का वेट कर रही हूँ in the chat box. I have already shared the whole thing in the session of goal setting जो हमने सितंबर में अगेन सेज यूनिवर्सिटी के साथ किया था. उसमें गोल सेटिंग में इस पूरी चीज को बहुत डीपली डिस्क्राइब किया था, शेयर किया था. सो प्लीज शेयर इन द चैट बॉक्स कि आपका अपना फोकस क्या है. आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स प्लीज. NIFT, that's great. All the best, Galaxy J6 Plus, NIFT. Samriddhi, Nidhi, Sushila, Jessica, Sandeep ji. Great, there are so many NIFT students. Wonderful, all the best. All the best to all of you. Good rank, Nisha, wonderful. Good rank in what? Top rank in what? So we will be defining it. I have already shared self-development, Anupama ji. That's great, wonderful. So the failure to plan, एक जो last point था, failure to plan का मतलब क्या है कि आपके जो plans हैं वो या तो प्लान है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा, या रियलिस्टिक नहीं है, या आपको पता नहीं है कि जो प्लान आपने बनाया है वो एग्जीक्यूट करने में कहां से दिक्कतें आ सकती हैं. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है? लास्ट स्लाइड में हम जब थे तो हमने फेलियर टू अचीव का मतलब समझा था क्या है, फेलियर कहां होते हैं. इस वक्त हम समझ रहे हैं कि उसी का ऑपोजिट, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए 3 चीजें फिर जरूरी हैं. Priority, focus and planning. I am taking the same things from last slide. हमारा फोकस नहीं था तो हमारा फोकस जरूरी होना जरूरी है. प्रायोरिटी हम नहीं डिसाइड कर पा रहे थे तो प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, और प्लानिंग जरूरी है. प्लानिंग के बारे में we have already discussed in goal setting. So how will you be prioritizing? Again, this is a start slide. Please click this slide. आप उसको क्लिक कर सकते हैं. This is a very scientific tool. Time management matrix as given by Stephen Covey. तो आप इसको क्लिक कर लें अगर आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है. It is going to be very helpful for you in all kind of things जहां आपको टाइम मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं. तो the first point is कि आप इस मैट्रिक्स को जब बनाएंगे, आप अगर खुद ड्रॉ करेंगे तो आपको याद भी रह जाएगा कि पहला जो ब्लॉक है आप देखेंगे वहां पे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है. टॉप में अर्जेंसी लिखा हुआ है, लेफ्ट में इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है. फर्स्ट कॉलम में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दोनों आते हैं. ठीक है. सो अर्जेंसी अगर बहुत ज्यादा है और इम्पोर्टेंस भी है उस चीज का, तो उस चीज को डू इट नाउ, आज और अभी और इसी वक्त करना है. ठीक है. जैसे कि मेरा कल ही एग्जाम है एनी हाउ, या आज मेरा सेशन था एनी हाउ. सो इवन इफ समथिंग एल्स हैपेंस इन माय लाइफ, दिस इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट टू डू इट नाउ. तो आप अपनी लाइफ के सारे डिसीजंस को इन चारों कैटेगरीज में डालेंगे और एनालाइज करेंगे कि ये मेरा किस ब्लॉक में आ रहा है. ठीक है. सो इज इट इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट? डू इट नाउ. इफ इट इज इम्पोर्टेंट, हायर लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस है बट अर्जेंसी नहीं है इतनी, देन व्हाट विल यू डू? मुझे काम तो करना है इस चीज का, मेरा एग्जाम है पर मेरा एग्जाम 3 से 6 महीने के बाद है. सो यू विल प्लान टू डू इट एंड वर्क ऑन इट स्लोली. यू कैन नॉट कंप्लीट योर होल सिलेबस ऑफ ईयर. 1 साल के बाद एग्जाम है तो आप अभी के अभी पूरा का पूरा सिलेबस नहीं कंप्लीट कर सकते हैं. ठीक है. तो आप उसको प्लान करेंगे, मुझे कितने उस पर भी हम बात करेंगे किस तरीके से प्लानिंग होगी. एंड वी विल चंक इट डाउन एंड धीरे धीरे हम अपने टारगेट तक पहुंचेंगे, बट वी विल कंटिन्यूअसली बी वर्किंग ऑन इट प्लानिंग के साथ. थर्ड ऑप्शन है कि ना तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ना ये काम मेरे लिए अर्जेंट है, तो ये कंप्लीटली मेरा टाइम वेस्टर है. ठीक है. सो डिलीट इट फ्रॉम योर लिस्ट. कहीं लिस्ट बनाई हो मेंटली या फिजिकली, डिलीट इट कंप्लीटली. And the fourth point is that this task of mine is urgent but not so important. What kind of work is that? अगर मेरे लिए urgent है ये,
बट इंपॉर्टेंट नहीं हो, ये बहुत सरप्राइजिंग क्वेश्चन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घरों में, बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि मदर्स भी वर्किंग है, फादर्स भी वर्किंग है, घर पे बहुत सारा काम है जो अर्जेंटली होना है, तो क्या करते हैं वो, बट उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि वही करें उस काम को, तो दे डेलीगेटेड टू द मेड्स या फिर दे डेलीगेट टू द कुक्स कि कुकिंग आप देख लो, मैं बताती जाऊंगी करना क्या है, पर आप मुझे करके दे दो। ऐसे ही ऑफिस में होता है कि देयर इज अ मैनेजर और अ कॉर्पोरेट पर्सन, उसके लिए वो काम डेलीगेट किसको करता है कि ईमेल्स आए बहुत सारे, अर्जेंटली मुझे उनके रिस्पॉन्सेज देने हैं, पर जरूरी नहीं है कि मैं दूं, सो दे हायर अ सेक्रेटरी एंड देन दे डेलीगेट दैट वर्क टू दैट सेक्रेटरी। पूरा काम अपना उस सेक्रेटरी को दे देते हैं कि वो काम सेक्रेटरी करेगी, ठीक है। और वो सेक्रेटरी वो उनसे मेल पूछती है आप क्या चाहते हैं मैं लिख दूं, और वो बोलते जाते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बोलते हैं, वो टाइपिंग करती है, वो सेंड करती है सारा मेल, ठीक है। इस तरीके से अगर कोई काम, इसको मैं रेगुलर लाइफ में कैसे लूंगी, अब अगर सपोज देयर इज अ गेस्ट, जो आपका कोई गेस्ट आ रहा है घर पे, अगर मैं अकेला हूं, सपोज आई एम अ बॉय और अ गर्ल एंड आई कैन ड्राइव, एंड मेरे पेरेंट्स आ रहे हैं और उसी दिन मेरा एग्जाम है, तो व्हाट आई कैन डू डेलीगेशन में कि मैं, या कोई गेस्ट आ रहे हैं और मेरा एग्जाम है, तो मैं क्या करूंगी, गेस्ट आ रहे हैं, मेरा एग्जाम है, आई विल रिक्वेस्ट माई एनीवन एल्स जो मेरे घर पे हो या मेरे फ्रेंड सर्कल में हो कि आप जाके उन्हें ले लेना, क्योंकि मेरा तो एग्जाम है, तो अर्जेंसी है उनके आने की, उन्हें लेने कौन जाएगा, बट मैं इस काम को किसी और को सुपुर्द कर सकता हूं क्योंकि वो अर्जेंसी मेरी कहीं और ज्यादा जरूरी है, तो मेरी प्रायोरिटी थोड़ी सी चेंज हो गई है अर्जेंसी की फिलहाल, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप अपने सारे काम इन चारों पॉइंट्स में, इन ब्लॉक्स में डाल के चेक करेंगे कि कहां पे फॉल कर रहे हैं, देन यू विल बी डूइंग योर वर्क अकॉर्डिंगली। नाउ एक एग्जाम्पल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, जो सक्सेसफुल पीपल अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का मतलब है कि उतने ही वक्त में जो 24 घंटे उनके पास भी हैं, मेरे पास भी हैं, सबसे हाईएस्ट सक्सेसफुल पर्सन के पास भी 24 घंटे हैं, जो बहुत ज्यादा, जिसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं उसके पास भी 24 घंटे हैं। तो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं, उतने ही वक्त में ज्यादा से ज्यादा काम कैसे हो जाए, इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ स्टीव जॉब्स का। आंसर आप देंगे मुझे कि ये दो लोग जिनका एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, उन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक छोटा सा चेंज किया अपनी लाइफ में, और उसका एग्जाम्पल ये है कि स्टीव जॉब्स ने जब अपने जितने भी ये स्पीचेस दिए थे डिफरेंट ईयर्स में, क्या आपको इन सब में कोई चीज कॉमन दिख रही है? एंड similar example is of Mark Zuckerberg. Dress. Perfect. So what they did was उन्होंने अपना एक डिसीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए, कपड़े वो कोई भी पहन सकते हैं, है ना, रोज में चेंज कर लेंगे, सेम कपड़ा नहीं पहन रहे, वो कपड़े बहुत सारे हैं उनके पास, ऐसा नहीं है कि सेम एक ही टी शर्ट चला रहे हैं, बट द थिंग इज दैट उन्होंने उस चॉइस को अपने रिड्यूस किया। दे डिसाइडेड कि उनके पास बहुत बड़े बड़े डिसीजंस है लेने के लिए, डेली में ये छोटे छोटे डिसीजंस उनका टाइम बहुत स्पॉइल कर रहे हैं। तो दे डिसाइडेड कि इस चीज को ओवरकम करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, दे डिसाइडेड कि हम ड्रेस की जो चॉइस होती है उसी को रिड्यूस कर दें। Right, Sashi ji said, Krishna said dress code, right? And they multiply their skill and hire skilled person. That's also a similar thing. Wow, delegation, that is what is called as delegation, right? So another activity that I'm sharing with you is, this is again a star slide. Please click it or draw it. इस वक्त तो मैं draw ही करवाना चाहूंगी, click करना है तो आपकी choice है. Please draw this slide. जो भी picture बनी हुई है, 24 घंटे हमारे पास दिन भर में होते हैं, आपको 24 ब्लॉक्स बनाने एक ही पेपर में। Once you are done, I'm giving you 10 seconds to do that. I know कि आप बहुत जल्दी इस काम को कर देंगे, अब आप एक्सपर्ट होते जा रहे हैं टाइम मैनेज करने के लिए। The moment you are done, please do let me know. Done, पहला पर्सन बोलेगा done and I will move forward. Done, Nisha said done. Wonderful.
And if you are done with creating these, great. Sashi, Manami, great. Komal. So we are moving now. हमें ये 24 घंटे अपने मैनेज कैसे करने हैं इसको समझते हैं. क्रिस्टी, चित्रलेखा, Anupama, Simran, Dhwanya, okay. And another C2, I can't get it. Arohi, Usha, Honor, Sushila. Great. So let's move forward now. So productive time management की जो worksheet मैंने आपसे बनवाई है, उसमें पहला step होगा. Step A is that you will mark a hashtag sign. जो भी आपका डेली रूटीन वर्क है, जो मैंने यूज के लिए बताया था, हाउ यू आर यूजिंग योर टाइम, नॉर्मल रूटीन वर्क के लिए जो यूज कर रहे हैं, अपनी इस इन ब्लॉक्स में आप हैशटैग डाल दीजिए वहां पे कि ये ब्लॉक्स आपके ऑक्यूपाइड हैं. 1 लिखा हुआ है मतलब रात का 1 बजे, ठीक है. रात का 1 बजे के आसपास वो 1 घंटे से 1 बजे से लेके 2 बजे तक का जो वक्त है आपका, वो फर्स्ट ब्लॉक में आएगा. वहां पे आप सो रहे होते हैं यूजुअली, तो वहां आप हैशटैग डालेंगे क्योंकि स्लीप इस कैटेगरी में आ रहा है. अगर आप 5 बजे तक सो रहे हैं तो आप हैशटैग 1 to 5 डालेंगे. और साथ में अगर रात में आप 10 बजे सो जाते हैं तो 10 बजे से रात के 10 बजे का मतलब कितना होता है, अगर इसी में देखेंगे तो इट इज 22 आवर्स. सो 22 से आप सुबह जितने बजे तक सोते हैं उसमें आप हैशटैग डाल देंगे. आपको लिखना हो तो स्लीप भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है. एंड ऑल्सो आप कितना वक्त या कौन सा वक्त आप घर के काम को करने में, भले ही आपको मम्मी ने कहा हो कि जाके साइड कहीं से दुकान से कुछ लेकर आ जाना, या आपका अपना पर्सनल कुछ काम हो, या आपके एक्सरसाइज रूटीन हो, मेडिटेशन हो, खाने की हैबिट्स हो, उन सबको आप हैशटैग डाल के उन ब्लॉक्स को खत्म कर दीजिए जितना में यूज हो रहा है, बिकॉज हम आपका प्रोडक्टिव टाइम निकालने वाले हैं. सेकेंड इज क्वेश्चन मार्क डालेंगे उन ब्लॉक्स में जहां आप ऐसी बहुत सारी मिसलेनियस चीजें कर रहे हैं, जैसे फोन पर है अननेसेसरीली, ठीक है, जो जहां वेस्टेज हो रहा है आपका टाइम, फोन पे ज्यादा है, चैट ज्यादा कर रहे हैं लोगों से, अननेसेसरीली लोगों से मिल रहे हैं, अनस्पेसिफाइड एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं जो आपको भी नहीं पता आपने क्यों कर दिया ये काम, ऐसे जगह पे इन्वॉल्व हो रहे हैं जहां आप इंजॉय भी नहीं करते बट आप इन्वॉल्व आपको होना पड़ रहा है, ठीक है, आप हो गए, जबरदस्ती में हो गए. कंप्लीटेड. You have a question, Rian C2. Your hand is raised. Okay. ठीक है. So third is step 3 is जब आप अपने आपके जो work hours हैं, मैंने यहाँ पे a little bit of dollar sign दिया है. This is going to help you out a lot. ठीक है. तो जो भी बाकी के टाइम ब्लॉक्स आपके बचे हैं वहां पे आप डॉलर साइन बना लीजिए जो आपके वर्किंग टाइम है, स्टडी का टाइम है, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट वाला टाइम है, ठीक है. इन्वेस्ट करेंगे इस टाइम को वर्क में तो पैसा आएगा, स्टडीज में तो सक्सेस आएगी. सो वहां डॉलर साइन बना लीजिए. देन नाउ टेल मी हाउ मेनी ब्लॉक्स आर लेफ्ट. इज देयर एनी ब्लॉक लेफ्ट? देयर इज अ स्टेप बी एज वेल, इसलिए पूछ रही हूं मैं. कोई ब्लॉक्स बचे हुए हैं किसी के, या सारे ऑक्यूपाई हो गए? आप टाइप कर सकते हैं. निशा, कोई भी ब्लॉक नहीं बचा? थोड़ा सा भी? यस मैम. कुछ भी नहीं बचा? नो मैम, एक भी नहीं बचा है. अगर कुछ नहीं बच रहा तो जो स्टेप बी पे किया था वहां से टाइम को निकालना पड़ेगा. ओके. स्टेप बी के कितने ब्लॉक्स हैं? क्वेश्चन मार्क कितने ब्लॉक्स में लगाया? मैम 3. 3. कैन यू रिड्यूस इट टू 2 एंड देन रिड्यूस इट टू 1 slowly? यस मैम. So please practice that. ठीक है. अगर आपके पास कुछ भी बच रहा है तो हम उसको प्रोडक्टिव टाइम में कैलकुलेट करेंगे. कैसे करेंगे वो मैं बताती हूँ. और अगर कुछ भी नहीं बच रहा है तो आपको यहां से निकालना है वो टाइम, और थोड़ा सा स्पीड अप करके फर्स्ट वाले ब्लॉक से भी निकालना है. मतलब कि अगर आप स्लीप कर रहे हैं 10 आवर्स 12 आवर्स, देन आपको उसको थोड़ा रिड्यूस करना है. ठीक है. हाउ मेनी ब्लॉक्स? निशा ने बताया था ना. सिमरन, किसने बताया था मुझे आंसर? निशा. मैम निशा. ओके. निशा, आपका स्टेप ए में हैशटैग कितने ब्लॉक्स में? मैम 14. 14. उसको 12 करने की कोशिश कर सकते हो आप? यस मैम.
है ना। अब अपने लिए एक एक करके धीरे धीरे ब्लॉक्स खाली करना शुरू करो, बिकॉज हम स्टेप सी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द टाइम जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? एनीबॉडी जिसको डाउट है थोड़ा बहुत? ये Yes, स्टेप्स ma'am. क्लियर हो गए? Yes, ma'am. परफेक्ट। अब हम प्रोडक्टिव टाइम समझने की कोशिश करेंगे कि जो आपका वक्त निकला है, जो खाली बचा हुआ है टाइम, उस वक्त में आप समझोगे जो भी खाली जहां जहां आप बचा सकते हो, अब आप ये समझोगे कि कौन सा वक्त है जिसमें आप सबसे ज्यादा आपकी एनर्जी होती है, सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, मॉर्निंग, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, आप जल्दी उठ जाते हो, तो दैट इज योर मोस्ट इफेक्टिव टाइम, जहां जब आपकी मैक्सिमम वर्किंग कैपेसिटी होती है। तो कोशिश करना है कि आपका जो ब्लैंक स्पेस आ रहा है, अगर आपकी वर्किंग कैपेसिटी मॉर्निंग में सबसे ज्यादा है, तो वो ब्लैंक स्पेस को मॉर्निंग में शिफ्ट करना है। ठीक है, सपोज आप 7 बजे उठ जाते हैं और आप बाकी के रूटीन वर्क आपके 10 बजे से सपोज शुरू होते हैं, तो आपको वो 1 घंटा मॉर्निंग का 7 से 8 का निकालना होगा, जो ब्लैंक होगा, खाली होगा आपके प्रोडक्टिव टाइम के लिए। ठीक है, इस प्रोडक्टिव टाइम को आप उन चीजों से फिल करेंगे जहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एक्स्ट्रा, जो भी आपके लिए फायदे की चीजें होंगी, उसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस टाइम को। ठीक है, गेटिंग इट? ये पूरा समझ में आया? वर्कशीट कंप्लीट कैसे करनी है आपको, अपने टाइम को कैसे निकालना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. परफेक्ट समृद्धि, ग्रेट। अब एक प्रॉब्लम जो आती है, जो सारे बच्चों को भी आती है, बाकी लोगों को भी आती है, वो है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब है हम हमेशा अपनी चीजों को टाल देते हैं आगे पर, कि आज नहीं थोड़ी देर बात करते हैं, अरे थोड़ी देर बाद नहीं थोड़ी देर और बात करते हैं, और ऐसा करते हैं कल कर देंगे, एंड दिस इज अ वेरी 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 कॉमन थिंग। ठीक है, हर एक इंसान इस चीज को फेस करता है। हाउ टू ओवरकम दैट? तो लेटर करने की आदत से मुक्त होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम उस काम को अभी इसी वक्त करें। पर अभी इस वक्त ऐसे ही मैं बता दूंगी कि अभी करें, तो पता है मैम कि अभी करना चाहिए, पर नहीं कर रहे हैं क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाता है अंदर। तो मैं एक छोटे छोटे स्टेप्स बता रही हूँ आपको। इसको हम कहते हैं हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट। इफ यू आर वेजिटेरियन, डोंट थिंक कि मैं एलिफेंट खाने को बोलूंगी, दिस इज जस्ट अ मेटाफॉर। मेटाफॉर हम कहानियों की तरह यूज करते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। आपको हमेशा याद रहेगा कि दीपमाला मैम ने कहा था कि एलिफेंट खाना है, एलिफेंट कोई खाने की चीज नहीं। इवन इफ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू विल नॉट गो फॉर इट। ठीक है, सो मेटाफॉर्स आर यूज्ड टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट टू यू। ठीक है, सो हाउ डू यू ईट एन एलिफेंट? मतलब कि कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया आपके पास, एग्जाम सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है स्टूडेंट्स के लिए, अगर बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट आ गया है, तो आप उस बड़े प्रोजेक्ट को फिनिश कैसे करेंगे? तो मैं एग्जाम्पल दूसरे तरीके से देती हूँ। आपके पास प्लेट में कंपटीशन है 5 लोग के साथ कि आपको जो भी आपकी फेवरेट डिश ही ले लो, कोई भी फेवरेट डिश है, नूडल्स आप लेते हो तो एक क्वांटिटी तक ही ले सकते हो, बट कंपटीशन है कि आपको उस क्वांटिटी का 10 टाइम्स खाना है, उस तरीके से। तो दिस इज एन एलिफेंट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि बड़ी सी ह्यूज सी चीज है जो बड़ी लग रही है मुझे, कि पहाड़ चढ़ना है मुझे, माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, दैट इज ऑल्सो एन एलिफेंट फॉर यू। ठीक है, सो हाउ डू यू डू दैट? द प्रोसीजर इज बहुत सिंपल सा आंसर है, 1 बाइट एट अ टाइम। 1 बाइट एट अ टाइम मीन्स आप एक कौर खाओगे, फिर दूसरा कौर खाओगे, फिर तीसरा कौर खाओगे। तो इन दैट वे आप धीरे धीरे करके उस पूरी चीज को डिवाइड करते हुए कंप्लीट कर लोगे। सो डोंट थिंक कि मुझे इतना काम है और मैं कैसे करूंगा। बस शुरू करो और उसका पहला स्टेप कंप्लीट करो। फर्स्ट इज कंप्लीटेड, उसका सेकंड स्टेप कंप्लीट करो। द सेकंड इज कंप्लीटेड, थर्ड कंप्लीट करो। सो डोंट थिंक कि इतनी बड़ी चीज है मुझे कैसे करनी है, उसके छोटे छोटे चंक बनाए हैं, पहले एक एक करके स्टेप चलेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल है, अगर मुझे माउंटेन क्लाइंब करना है तो उसके लिए वहां मैं उड़ के नहीं पहुंच सकती, मुझे यहाँ से एक एक कदम करके चल के जाना पड़ेगा। अगर मैं यहीं खड़े होकर सोचूं कि पहाड़ बहुत ऊंचा है तो मैं नहीं चढ़ती, तो दैट्स अ वेरी टिपिकल थिंग, आप वहां पहुंच ही नहीं पाओगे, सक्सेस कैसे मिलेगी? तो इकलौती चीज जो है वो करनी है कि आज मैं पहला कदम चलूं, कल दूसरा कदम चलूं, परसों तीसरा, हो सकता है किसी दिन मैं दौड़ भी लगाने लग जाऊं, और सब कुछ फिर बहुत इजी लगने लग जाएगा।
So you have to just eat one bite at a time. Got it? So the secret is consistent effort. आपको लेकिन वो कदम रोज चलना है, वो बाइट रेगुलरली खाना है. इट्स नॉट दैट आज खाया 4 दिन छोड़ दिया उसको, वो नहीं करना. यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू इट, अदरवाइज कोई और आपसे रेगुलरली करते करते सक्सेस ले लेगा. ठीक है? सो अनदर, दिस इज अगेन अ मेटाफोर, ईट दैट फ्रॉग. दिस इज अ बुक रिटन बाय ब्रायन ट्रेसी. ये प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रोकते हैं इसी पर है. Though it's a very 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 successful book, but for all of you students वैसे बहुत पतली सी है, but आपके पास पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है. तो it's up to you. If you are a reader, आप पढ़ सकते हो इसको परचेज करके. पर इसके क्रक्स मैं आपको कुछ दे रही हूँ इसी में, जो उन्होंने प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म करने के लिए बोले हैं. आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव टाइम, जो मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली स्लाइड में एक्टिविटी में, कैसे प्रोडक्टिव टाइम आप अपना निकालेंगे. Got it? Give me a thumbs up. सिमरन एंड समृद्धि को देख पा रही हूँ मैं फिलहाल. ठीक है? So give me a thumbs up if you are getting it. Identify your most effective actions required. अब आपको पता चल गया है कि आपको आपका टाइम कौन सा है सबसे वैल्यूएबल, उस वक्त में आपको एक्शन कौन सा लेना है. हमने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स अभी थोड़ी देर पढ़ी थी स्टीफन कोवी की, कि हमारी प्रायोरिटीज कैसे डिसाइड करेंगे, वो इस पे बेस्ड है. ठीक है? तो आपका एक्शन समझ में आ जाएगा. आपको आपका डेलीगेट करना है, आपको इस काम को अभी करना है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है. ऑन दैट बेसिस आप इस स्टेप को डिसाइड करेंगे. थर्ड इज प्रायोरिटाइजिंग. प्रायोरिटाइजिंग ईट दैट फ्रॉग मीन्स, यहाँ पे मैं इसको ऐसे बताऊंगी कि जब मम्मी कोई बिना पसंद की सब्जी हमारी थाली में रख देती हैं और एक पसंद की सब्जी, दो चीजें रख देती हैं. ठीक है? एक करेले की सब्जी है और एक बिल्कुल शाही पनीर और समथिंग व्हाट यू लाइक. ठीक है? और कहती खाना है, पहले करेला भी खाना है. तो आप क्या करते हो कि करेला खाना तो पड़ेगा, फेंका नहीं जा सकता. तो आप क्या करते हो, करेला पहले फिनिश कर देते हो, खत्म करो इसको, खाना तो अंत में भी पड़ेगा मुझे इसको. एंड देन मैं अपने इंटरेस्ट की. हेलो. सो आप क्या करते हो, पहले आप वो चीज खाते हो जो अगली चीज है, जो आपको पसंद नहीं है पर आपको पता है हेल्थ के लिए अच्छी है, इसीलिए आपको बोला गया है कि आप करो. तो आप वो फिनिश करोगे पहले काम, अपना टास्क. पढ़ाई करना किसी को पसंद नहीं आता, ये मुझे पता है, बट सक्सेस सबको चाहिए है. हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है करेला खाना, पर करेला खाना किसी को पसंद नहीं है. सो ईट योर करेला फर्स्ट. सबसे पहली चीज आपको करेला खाना है, देन आप अपनी शाही पनीर खा सकते हो. ठीक है? सो द आइडिया बिहाइंड इट इज दैट eat your ugliest frog first. Whatever your ugliest task is, complete it first. जब सुबह अगर वो आपने सबसे पहला वो काम कर दिया, आपका पूरे दिन में आपको लगेगा ही नहीं कि आपके दिमाग में कुछ अटका हुआ है. बट अगर आपने वो काम नहीं किया जो आपको उस दिन के लिए करना था और आपने उसको टालना शुरू किया कि मैं थोड़ी देर में करूंगा, पूरे दिन वो आपके दिमाग पे बैठा रहेगा कि ये काम मुझे करना है करना है करना है, एंड इट विल बी देयर इन योर माइंड. सो फिनिश दैट फर्स्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड. फोर्थ इज, अगर कोई अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज हैं जो आपके फ्रेंड्स के साथ हैं या कहीं और किसी और जगह पर हैं, जो आपको भी पता है कि इट इज नॉट प्रोडक्टिव, आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे पोलाइटली आप उन्हें डिनाई कर सकें. आई विल बी क्रिएटिंग अ वीडियो ऑन यूट्यूब सून कि आप नो प्रॉपरली कैसे बोलें, यस प्रॉपरली कैसे बोलें. सूनर आई विल बी एडिंग दोज ऑन माय चैनल्स. एंड लास्ट इज डेलीगेशन, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब वो काम किसी और को आप दे सकते हैं करने के लिए, तो आप जरूर दे दें. ऑब्वियसली इन रिलेशनशिप्स यू कैन नॉट डेलीगेट एनीथिंग, सो बी देयर. जो इन्वेस्टमेंट वाली जगह है वहां टाइम आप किसी को डेलीगेट नहीं करें. इन्वेस्टमेंट आपको ही करना पड़ेगा. एजुकेशन आप किसी और को नहीं कह सकते मेरी पढ़ाई पढ़ के एग्जाम देकर आ जाओ. सो इन्वेस्टमेंट के जितने पॉइंट्स हैं वहां पे यू कैन नॉट डेलीगेट, तो इन्वेस्ट योर टाइम देयर. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो गोल सेटिंग में भी हमने इस पे वर्किंग की हुई थी, कि आप अपने साथ रेलेवेंट सवाल करने शुरू करें कि जो भी काम मुझे मिला हुआ है वो मैं क्यों कर रहा हूं. अगर आपको पता है आपका क्या काम है और आप क्यों कर रहे हैं, ओनली दो चीजें सबसे ज्यादा याद रखें, व्हाट एंड व्हाई. व्हाट एम आई डूइंग एंड व्हाई एम आई डूइंग इट. इफ यू हैव राइट आंसर्स टू दीज टू क्वेश्चंस, आप बहुत इजीली अपने टाइम को सेव कर पाएंगे. अगर आपको समझ में आया व्हाट यू आर डूइंग इज
नॉट रिक्वायर्ड टू डू, वहीं खत्म कर दो उस काम को, मत शुरू करो। अगर आपको पता है करना है, उसका रीजन नहीं पता, मैं क्यों कर रहा हूँ, इसको कह तो दिया इन्होंने करने के लिए, या मुझे लगता है चलो मैं घूम कर आता हूँ, पर घूम के अभी क्यों आना है, मुझे घूमना जरूरी है बट अभी जरूरी है कि अभी मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं। सो यू मस्ट नो व्हाई यू आर डूइंग इट, एनी एक्टिविटी अदर देन योर टास्क, है ना। सो व्हाट और व्हाई को क्वेश्चन जरूर करेंगे आप हमेशा हर एक्टिविटी में, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि आपका वो कंस्ट्रक्टिव टाइम है या नहीं है। अनदर थिंग इज दैट मैंने लाइफ के दिन के 24 घंटों को डिवाइड किया है, यहाँ तो इक्वल ही है, किसी का अनइक्वल भी हो सकता है। तो अनइक्वल आप देख लेना 8 आवर्स ईच है या कितना है, योर स्लीप और रिलैक्सेशन टाइम, योर वर्क और प्रोफेशनल टाइम एंड योर पर्सनल टाइम। मैं स्लीप और रिलैक्सेशन टाइम को अभी कुछ भी नहीं यहाँ पे बताऊंगी, क्योंकि वो बिल्कुल नेचुरल है, होना ही चाहिए जितना जरूरी है। 6-8 घंटे की नींद और रिलैक्सेशन इज रियली रिक्वायर्ड, आपकी बॉडी वापस से रिजुविनेट हो जाती है। वर्क, स्टडी या प्रोफेशन, उसका जो टाइम है दैट नीड टू बी देयर, वो होना भी वैसे ही जरूरी है। यहाँ मैं सिर्फ वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बात कर रही हूँ। तो पर्सनल लाइफ को बस मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, यहीं पे सारा वेस्टेज होता है टाइम का, और हम सही जगह पे नहीं वर्क कर पाते। तो यहाँ आऊंगी मैं, मेरी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स, गेटिंग इट। और इन तीनों में फैमिली इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर अस। सबसे पहले आप फैमिली को चेक करेंगे कि मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है कि नहीं, उसको कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। They are always with you and you are always with them, that is an assumption। जरूर कई लोगों को लगेगा नहीं ऐसा नहीं है, बट स्टिल उनसे बेटर कोई और है क्या, नहीं ना। तो इसीलिए गिव इंपॉर्टेंस टू योर फैमिली। सेकेंड थिंग इज गिव इंपॉर्टेंस टू योर सेल्फ। योर सेल्फ मीन्स आपकी हेल्थ मेंटली और फिजिकली अच्छी होनी चाहिए और आप पर्सनली भी ग्रो कर रहे हो। एंड थर्ड इज योर छोटे मोटे काम, ट्रैवलिंग, जो तस्नीम मैम ने कहा कि ट्रैवलिंग भी रिक्वायर्ड है, वहां भी टाइम वेस्ट होता है, दैट इज अ सर्टेन थिंग, वहां होता है, बट इफ इट इज अ नीड वो होगा। एंड आपका एंटरटेनमेंट में भी आप टाइम डालो, बट हाँ उतना ही कि वो यूज तक आए, वेस्ट तक नहीं पहुंचे। तो यू विल हैव टू डिसाइड क्या ये जरूरी है एंटरटेनमेंट आपके लिए इस वक्त करना। मुझे शायद सालों हो गए होंगे जब इंटरनेट कह रही हूँ, जब केबल आया था इंडिया में, आई वॉज डूइंग माई स्टडीज, मैं स्कूल मैंने कवर किया होगा तब, और सारी नेबरहुड में केबल लग रहा था, वायर के फॉर्म में आता था उस टाइम, तब वाईफाई वगैरह नहीं होते थे। एंड मैंने घर पे मना कर दिया था कि केबल नहीं लगेगा घर पे, बिकॉज मेरे स्टडीज पे इफेक्ट आएगा। एंड मैंने बहुत उसमें अपोजिशन अपने फैमिली में मेरे भाई से, मेरे पापा से झेला कि यार इसके चक्कर में टीवी में केबल ही नहीं लग पा रहा है, ये कैसी है, दूरदर्शन से हम कैसे चलाएंगे, है ना। एंड दैट वाज अ टाइम जब सिर्फ दूरदर्शन आता था, बट मेरा फोकस डिफरेंट था, इसीलिए मैंने अपने लिए कोशिश की कि मैं टीवी ना देखूं। इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक वॉचिंग टीवी, आई लव वॉचिंग टीवी, इसीलिए मैंने उसको दूर रखा है खुद से। अगर जब मुझे बहुत मन करता है, मैं एक मूवी महीने में 1 या 2 बार कोई देख लेती हूँ, एंड देन आई स्टिल, वो आपकी तपस्या होती है जो आप किसी चीज के लिए कर रहे होते हो, go for it, it is not worth your time. So what do you want to be? And I need your response in the chat box. You want to be Keshu or you want to be Roshu? I am waiting for your answers in the chat box. I'm expecting more of Keshus than of Roshus. Wonderful. So you all are actually listening to this story well. Wonderful, wonderful. I think सभी केशु बनना चाहते हैं। चलो अच्छा है, बेचारा रोशु और रो जाएगा इस बात को लेके। So to summarize this whole session and let me share with you कि हमें constant अपना जो focus है increase करने के लिए हमारे questions जो हमारे थे what, why, आप 5 पे मत जाइए, आप सिर्फ 2 पे जाइए, what and why। 5 W's and 1 H वो आप later stages में जब सक्सेस में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको याद आएगा, यहाँ आपने 5W and 1H किया था। एंड अनदर इज इम्प्रूव योर प्लानिंग। इसको हम ऑलरेडी वैसे तो हम गोल सेटिंग में वर्क कर चुके हैं, बट वी विल छोटा सा समझा देती हूँ। चंक डाउन करिए अपने जो भी गोल्स हैं उनको, जो भी चीज आपका टारगेट लग रही है बहुत बड़ी है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके डेली कंसिस्टेंटली आप उस पर वर्किंग करिए।
रिव्यू एंड ऑडिट्स का मतलब है कि जो भी आप कर रहे हैं उसको रात में सोने से पहले एक बार सोचिए कि मैंने जो दिन भर में किया वो कितना कंस्ट्रक्टिव था मेरी सक्सेस के लिए, या मैंने अपना टाइम वेस्ट किया। ये डेली आपको प्रैक्टिस करनी है एनी हाउ। और अगले दिन की प्लानिंग आप पहले से करेंगे कि मेरा जो सक्सेस का जो टारगेट है उसे अचीव करने के लिए मैं कल क्या करने वाला हूँ या कल क्या करने वाली हूँ, ठीक है। और उस जो आपने रात में सोचा होगा उसे अगले दिन मॉर्निंग से आप एग्जीक्यूट करना शुरू कर देंगे। हालांकि देयर आर डायरीज एंड कैलेंडर्स ऑलरेडी अवेलेबल जो कि आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं आपके मोबाइल्स पे। मैं क्या करती हूँ, मैं अपने हर एक जो भी मेरा अपॉइंटमेंट हो या मेरे जो सेशंस होते हैं, हर एक को डेट को मैं अपने मोबाइल में कैलेंडर होता है उसमें मैं डाल देती हूँ और याद रहता है मुझे, और वो भी मुझे याद दिला देता है। मैं उसमें डालती हूँ कि मुझे आधे घंटे पहले याद दिला दे या एक दिन पहले याद दिला दे कि मेरी ये चीज होने वाली है, कहीं पे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है या मेरा कोई काम है या मुझे स्लाइड्स बनाने हैं, वॉट एवर द वर्क इज, मुझे ये बुक पढ़नी है, मुझे उसके 20 पन्ने पढ़ने हैं, है ना। मैं ऐसे बुक रीडिंग भी ऐसे ही करती हूँ कि इफ आई हैव टू फिनिश अ बुक जो 200 पेजेस की है और मुझे 5 दिन में कंप्लीट करनी है तो 200 डिवाइड बाय 5, 40 पेजेस मुझे डेली पढ़ने पड़ेंगे। दिस इज हाउ आई डू इट, अगर मुझे वो 5 दिन में ही फिनिश करनी है तो। एंड देन आई जस्ट स्टिक टू दैट कि 5 दिन सिर्फ मैं यही कर रही हूँ क्योंकि मुझे 5 दिन में एनी हाउ करना है। तो मैं कहीं दौड़ के जाती हूँ, कुछ करना भी होता है, जल्दी करती हूँ, वापस आती हूँ, फिर बैठती हूँ। ऑल्सो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम भी आप दे सकते हो कि आपने कोई चीज आधे घंटे की, पर उस आधे घंटे में आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी भी तरीके से। जो आपने जितना टाइम चूज किया, आपने 15 मिनट चूज किया तो 15 मिनट आप कुछ और नहीं करेंगे। आपने 1 घंटा चूज किया, वो चॉइस आपकी है, पर उस 1 घंटे में आप कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। Tasneem ma'am is sharing, she shared a form with all of you. I request you all कि जब तक मैं ये सेशन ले रही हूँ प्लीज आप लिंक चेक करके मुझे एक फीडबैक फॉर्म जो मैम ने शेयर किया जरूर दें। उसके साथ एक गिफ्ट मिलेगा आपको which I'll be sharing later with you. And so coming back to this, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए प्रायोरिटाइजिंग जो हम बात कर चुके हैं टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स में, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑल्सो फाइंड प्रोडक्टिव टाइम जो हम प्रोडक्टिविटी शीट से चेक कर चुके हैं, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को रिमूव करने के लिए आज ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें की थी हमने इस पूरे सेशन में, विच इज चंक डाउन, अपने टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में हम डिवाइड करके वर्क करेंगे। ऑल्सो वन मोर थिंग इज दैट कि देयर इज अ मेंटोर, यू कैन से ट्रेनिंग फील्ड के सबसे हाईएस्ट मेंटोर हैं, कोच हैं टोनी रॉबिन्स, एंड एज पर हिम टाइम इज एन इमोशन. So what, how can time be an emotion? That's the biggest question. आप एक छोटी सी एग्जांपल देखिए कि मैं कुछ काम करती हूँ और वो काम करते करते मुझे ऐसा लगता है कि टाइम तो मेरा गुजर ही नहीं रहा। कोई बोरिंग मूवी हो तो मुझे लगता है कि यार ये 2 घंटे कैसे खत्म होंगे, एंड अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग मूवी होती है लगता है यार वक्त का पता ही नहीं चला, 2 ही घंटे थे वो, पर 2 डिफरेंट मूवीज थी। किस मूवी ने आपको कौन सा इमोशन दिया उसके हिसाब से आप वक्त को कैलकुलेट करते हैं। इफ टाइम वाज फ्लाइंग, लाइक आपका कोई काम करते वक्त आपको लगा वक्त, उस काम को करते करते आप कंसिस्टेंटली आधे घंटे की जगह 2 घंटे 4 घंटे कर रहे हैं, बिकॉज आई नो दैट देयर आर so many aspirants of NIFT in this session as well, apart from the Sage University students. तो आई एम अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि वो जब कुछ क्रिएट करते होंगे तो उनको पता नहीं चलता होगा ये क्रिएशन में मेरा कितना वक्त चला गया, एंड दैट्स द पावर ऑफ क्रिएटिविटी। तो जब आपको लगता है कोई काम करते वक्त आपका इमोशन वहां इन्वॉल्व होता है, आपको लगता है वक्त उड़ गया पर मेरा ये काम मुझे लगता है और करता जाऊं, तो दैट इज व्हाट आई कॉल टाइम एज एन इमोशन, आई मीन बाय टाइम एज एन इमोशन, ठीक है। तो आप अपने काम में इतना रम जाएं कि आपको वो वक्त पता ही ना चले और काम आपका बहुत जल्दी हो जाए। And these are the links of my YouTube channel, Facebook page, Instagram, and email. I request you all, please take a picture of this and do write to me. There is also a feedback form there. Do write to me. आप personally मुझे email भी send कर सकते हैं, last में जो मेरा email ID है, कि आपको इसमें और क्या चीज क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है टाइम में ये वाली और चीजें हैं जो मैं समझना चाह रही थी, बिकॉज देयर इज अ लॉट, बट मेरे पास थोड़ा सा लिमिटेड ही टाइम था, तो इसलिए मैं जितना आपको दे सकती थी इस वक्त में मैंने दिया है।
but soon I will be having another छोटा सा एक मेरा एक कोर्स होगा जो मैं अपने किसी प्लेटफॉर्म में मे बी फ्री ऑफ कॉस्ट डाल दूं कॉम्प्लीमेंट्री वे में. That is what my gift is for you. So I'll be creating it and sharing with you all. If you will share your feedbacks with me and I know your email IDs. Another gift that I'm sharing with you is आपका feedback form जैसे ही fill होके मेरे पास आएगा, details आएंगे. आपको memory technique का एक session है जो मैंने बनाया था. I think बहुत सारे students के पास जो NIFT aspirants हैं उनके पास कल पहुंच चुका होगा ये session, ये memory technique का. I'll be upgrading it more and more. आपको कोई चीज याद करने में कोई दिक्कत होती है तो वो सारा उस सेशन में मैंने बताया है और वो अपग्रेड होता रहेगा. उसमें बहुत सारी टेक्निक्स मैं देती रहूंगी कैसे आप अपनी चीजों को रेगुलर रूटीन वे में याद कर सकते हैं. जो सबसे बड़ा इश्यू स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा होता है कि मुझे चीजें याद नहीं हो रही. दैट विल बी देयर एंड दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू. एंड नाउ प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन दैट यू रियली नीड टू आस्क, आई एम देयर फॉर यू. Tasneem, can we? Participants, you can unmute yourself and ask questions. Madam, how to improve time management? सर कौन सी जगह पे आपको प्रॉब्लम हो रही है पहले ये बताइए. मैंने जो पूरा सेशन लिया है ना उसमें मैंने छोटे छोटे बहुत सारे टिप्स दिए हैं, बड़ा भी दिया है. आप मुझे एग्जैक्टली बताइए आपको कहाँ प्रॉब्लम हो रही है. Priorities. सॉरी, प्रायोरिटाइज करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है. आपको ये नहीं समझ में आ रहा पहले कौन सी चीज करनी है. तो आपने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स जो मैंने आपको बताया था उस चीज पे फोकस करिए और देखिए जो भी टास्क है आपका वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और अर्जेंट है या इम्पोर्टेंट और अर्जेंट नहीं है. उसके बेसिस पे ही आप प्रायोरिटाइज करेंगे. अगर इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है तो आप उसको प्रायोरिटी की लिस्ट में टॉप पे रखेंगे. मुझे आपका टास्क नहीं पता कि कौन सी चीज के लिए स्पेसिफिकली आप पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ. सपोज इफ आई एम अ ट्रेनर, है ना, मैं ट्रेनर हूँ. आपका मैं जान सकती हूँ आप स्टूडेंट हैं या आप कोई वर्किंग है, प्रोफेशनल हैं? आई एम काउंसलर. यू आर अ काउंसलर. ग्रेट. तो आपको किस चीज में प्रायोरिटी में समझने में दिक्कत हो रही है? अगर आप मुझे स्पेसिफिकली ये चीज बता पाएंगे तो मैं आपको और एग्जैक्टली परफेक्ट आंसर दे पाऊंगी इस चीज का. मैं अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ एज अ कोच एंड एज अ ट्रेनर that I create priority कि मेरा सबसे पहला टास्क ये है कि मैं अपने काम को जो मेरा प्रोफेशनल वर्क है उसको टाइम दूं. देन क्योंकि वो मुझे मनी दे रहा है, वो मुझे बहुत सारे और बेनिफिट्स दे रहा है, सक्सेस दे रहा है, देयर आर मल्टीपल थिंग्स. साथ ही मेरी फैमिली भी है, इसीलिए मैंने लास्ट में आपको बताया था कि फैमिली भी जरूरी है. सबसे पहले आपको उसको वक्त देना है. और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा वक्त अपने सेशन के लिए देना है, अपने एज अ काउंसलर देना है. देयर नीड टू बी टाइम डिफाइंड फॉर योर फैमिली, देयर नीड टू बी टाइम डिफाइंड फॉर योर वर्क. अगर आप डेली अपनी फैमिली को 20 मिनट्स भी इफेक्टिवली दे पा रहे हैं तो दैट इज, कई बार वो भी बहुत अच्छा होता है. बट उस टाइम अनडिस्ट्रैक्टेड टाइम होना चाहिए जो आप किसी को दे रहे हैं. इट शुड नॉट बी कि आप आधा घंटा 20 मिनट दे रहे हैं और उस टाइम पे भी आप कुछ और करते हुए दे रहे हैं. और अगर आप अपने वर्क को शुरू कर रहे हैं जिसपे आपको प्रायोरिटी रखनी है तो उसके लिए भी टाइम डिफाइन कीजिए कि मुझे इतने टाइम में अपना काम खत्म करना है और उसके बाद मैं इसको नहीं करूंगा, ये फिर इसके बाद मेरा नेक्स्ट डे इसी वर्क को कंटिन्यू करूंगा. मैडम, आई मीन फॉर इम्प्रूवमेंट हाउ टू मेजरमेंट इज द प्रॉब्लम. मेजरमेंट के लिए जो मैंने एक आपको शीट 24 आवर्स की दी है उसमें आपका प्रोडक्टिव टाइम कितना आया? मैं स्क्रीन शेयर फिर से करती हूँ उसके लिए. रुकिए, आपका कोई ब्लैंक स्पेस आया उसमें? $12 where is $? सॉरी, productive time is 12 hours. प्रोडक्टिव टाइम इज 12 आवर्स. एंड तो आपके पास, रुकिए मैं आती हूँ वापस. मैंने, हाँ, तो इसमें आपके कितने घंटे आए थे जो आपके यूज के थे, जो आपके वर्किंग जो आप वेस्ट कर रहे हैं अगर टाइम तो वो था,
कितना आपका तो ये स्टेप सीखा था वो कितना था आपका? Step number C, which is very important, especially Right. for not only studying, but I am doing some other activities also. That Right. is about 12 hours, 10 to 12 hours. Okay. Dollar is for 12 places. 1, 2, 12 3, places. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. हाँ, 12 places. 12 places आपकी ये वाला पार्ट आ रहा है. ओके Yeah. ओके. और क्या इससे स्पीड आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं अपनी वर्किंग को करने के लिए? Madam, I'm keeping myself busy, but I'm not able to set priorities. I'm doing several work at a time. ओके. I'm a आपको retired मैं एक government officer. प्रैक्टिस बता रही हूँ, मैं आपको एक प्रैक्टिस बता रही हूँ सर. आप अपने जो भी टास्क है आप प्लीज राइट डाउन, जो भी आप सेवरल वर्क कर रहे हैं ना उसको डिफाइन करिए एक लिस्ट पे. Yeah. देन आप उन दोनों फर्स्ट 2 में से कंपैरिजन करेंगे कौन सा आप टॉप पे रखेंगे. देन आप नेक्स्ट 2 में से कंपैरिजन करेंगे उसके ऊपर क्या जाएगा. आप स्लोली आप उनको प्रायोरिटी आपकी ऐसी डिसाइड होगी दूसरे से कंपैरिजन करके. अगर आपको लगता है कि आपका वर्क ऊपर जाएगा और कौन सा वर्क ऊपर जाएगा अगर आप डिफाइन कर पाए तो टॉप पे जो आएगा. दिस इज अ होल प्रोसेस. मुझे 10-15 मिनट लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को किसी को प्रैक्टिस कराने के लिए कि कैसे प्रायोरिटी आप डिसाइड करेंगे. If you are already a counselor, that's why I was assuming ki if you are aware of this practice, then easily you can do it. If not, then मेरा details last में दिए हुए हैं. Please connect with me. I shared it in this session at the end. So please do connect with me and we can discuss with that. मेरा email ID last में है. You can see this. Please email ID. Or you can connect with me on you can connect with me through email ID. We'll discuss that. Thank you, madam. Welcome. And anybody else? Any student wants to share something that they really are stuck somewhere? बच्चों कोई प्रॉब्लम है? Students, if you have any query, you can ask. Get a very clear vision of how you're going to manage your time when the university starts, when the classes starts, how will you manage your personal life, your studies. Yeah. Okay, Simran. Are you asking something, Simran? Ma'am, we know that कि हम लोग को क्या करना है. मेरे को पता रहता है कि मेरे को ये काम अभी कंप्लीट करना है, बट एट अ टाइम फिर कुछ ऐसा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि हम उस काम को नहीं करके हम ठीक है उसको डिले कर देते हैं. ये बहुत नॉर्मल, ये प्रॉब्लम सबके साथ है. पता होता है कि ये करना है पर सडनली कोई डिस्ट्रैक्शन आता है और हमारा रास्ता बदल जाता है. प्लान करते हैं हम रूटीन और फिर क्या होता है ना कि फैमिली ओकेजन आ गया तो फिर मैं रूटीन को एक बार के लिए फिर से बिगड़ जाता है. फिर हमको एक न्यू रूटीन बनाना पड़ता है. तो मैम इस तरह तो टाइम निकल जाता है रूटीन बनाते बनाते. कभी कभी ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है अपनी चीजों को लेके. मुझे पता है फैमिली में बहुत सारी चीजें आती हैं. फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू माई ओन एग्जाम्पल. मेरी फैमिली मुझे भूल चुकी है कि मुझे मूवी थिएटर में ले जाना है. वो मेरे लिए टिकट ही नहीं लेते. दे टेल मी कि इसके लिए टिकट नहीं लेनी है, ये तो जाएगी नहीं. ठीक है. और शुरू में जब मैंने 3-4 बार मना किया तो दे वर लाइक कि तुम्हें हमारे साथ रहना नहीं है क्या. तो मैं टाइम वो स्पेंड करती हूँ सबके साथ लंच में, डिनर में, हंसते गाते हुए. वो मुझे इफेक्टिव टाइम लगता है उनके साथ स्पेंड करना. पर मूवी में हम सबके सब ब्लैंक बैठे हैं और एक मूवी की तरफ देख रहे हैं तो हमने एक दूसरे के साथ टाइम क्या स्पेंड किया? कुछ नहीं. इफेक्टिव टाइम इज कि मैं उनके साथ सामने बैठी हुई हूँ और उनसे बात कर रही हूँ, हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ. एंड एक टाइम शुरू में आया जब मैं काम करने बैठती थी एंड एवरीबडी वाज लाइक कि ये भी काम है कर दो, ये भी काम है कर दो, ये भी काम है कर दो. देन आई हैड टू डिक्लेयर कि ये इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम आप मुझे दे दो और उसके बाद इतने बजे से इतने बजे तक का टाइम आप जो कहोगे वो मैं कर दूंगी. ठीक है. सो इफ यू वांट समथिंग गिव देम द मतलब अनदर टाइम कि या फिर उनका टाइम है. उन्होंने कहा मुझे 7 से 8 तक में किचन में हेल्प चाहिए. सपोज मेरे भी घर में सब है, सबको चाहिए. सो इफ आई नो कि वो टाइम मैं उनको दे सकती हूँ, मैंने उनको वो टाइम दिया और मैंने कहा अब ना 8 से लेके 10 तक मुझे आप प्लीज मेरा काम कर लेने दो और फिर 10 से 12 फिर मैं आपकी हेल्प कर दूंगी.
So in that way आप कम्युनिकेशन प्रॉपर करना समझ गए कि आपको सामने वाले को कन्वे करना है, उन्हें वो दे दो जो उन्हें चाहिए, तो आपको वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। समझ में आई Yes, चीज? ma'am. Yes, ma'am. Thank you. वेलकम। और कोई? Nisha, you want to ask question? Nisha? Okay. Dhwanya asked me how to get rid of exam fear. It's a very separate topic apart from this time management, and I can take a whole session on this. So do let me know if that is what you are interested in. I'll create it. I will get you over your exam fear in that, because मैं NLP certified coach भी हूँ, तो मैं उसमें exam fear से आप कैसे बाहर आए उसका एक पूरा सेशन ले लूंगी, एंड उसमें ही आपके बहुत ज्यादा अच्छे से आपका एग्जाम फेयर खत्म हो जाता है उस सेशन में। दैट्स अ वेरी इट विल टेक यू इनटू मेडिटेशन एज वेल, थोड़ा मेडिटेशन उसमें जाता है, इसलिए इजीली हो जाता है। निर्लिप्ता आस्क्ड मी हाउ टू बी मोर फोकस्ड। ओके, अगर इनिशियली आपको लगेगा कि चीजें आपको समझ नहीं आ रही, आपका फोकस प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रहा है किसी चीज में, पर सबसे पहली चीज की मैंने लास्ट टाइम गोल सेटिंग भी कराया था, तो उसमें ही जवाब थे बहुत सारे। अगर आपको पता है आप क्या चाहते हो और आपको पता है आप क्यों चाहते हो, ये वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर फोकस धीरे धीरे बढ़ाने लगते हो। पर अगर आपका व्हाट एंड व्हाई आर नॉट सो क्लियर, मैंने तो 5 W's बोले हैं, पर फिलहाल तो मैं 2 पे ही बात कर रही हूँ। मैंने 5 W's समझाए हैं एंड 1 H। आगे के लोग कहते हैं कि 1 H, मतलब इसको टर्म ऐसे देते हैं, डोंट टेक इट इन अ नेगेटिव वे। 1 husband is for 1 H and 5 wives, ऐसे करके नाम रख दिया है उन्होंने। यू कैन नेम इट इन अ वेरी डिफरेंट वे एज वेल, कि how to do it is 1 H and 5 W's जो आएंगे, what, why, when, कब करूंगा मैं, क्यों करूंगा मैं, क्या करना है मुझे, and where, कहाँ करना है मुझे। इस तरीके से there are 5 W's. If you define them well, तो आपका फोकस धीरे धीरे बनने लगता है। आपको अपना रीजन नहीं पता है कि आपको क्यों करना है वो चीज, आप पर्टिकुलर रीजन नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं, तो आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आप जो करने वाले हैं वो करना क्यों है। अगर मैं अभी भी पूछ लूं कि इफ यू आर डूइंग NIFT और इफ यू आर अपीयरिंग फॉर एनी अदर एग्जामिनेशन, व्हाई यू आर डूइंग इट, तो आप में से आधे से ज्यादा लोगों के पास सवाल के जवाब भी क्लियर नहीं होंगे। कुछ लोगों के होंगे, बहुत सारे लोगों के नहीं होंगे। तो पहले अपने सवालों के, इन सवालों के जवाब ढूंढिए कि जो आप कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एंड आपका फोकस अपने आप आने लगेगा। क्योंकि और अगर आप उस चीज को डेस्परेटली चाहते हैं तो आपका फोकस अपने आप बनने लग जाएगा। एंड देन आई विल गिव यू प्रैक्टिकल सेशंस हाउ टू फोकस। ठीक है, दैट इज अगेन अ वेरी सेपरेट थिंग। एग्जाम फेयर वाले सेशन अगर हमने कभी लिया तो उसमें फोकस वाली चीज भी ऐड करूंगी मैं। There's one interesting question in the chat box. What? Need a session how to manage parents, convince our parents what we want to become. That's again a very interesting thing. बहुत ही interesting है। Ma'am, I have a question. Yes, Nisha, right? Yes, ma'am. Yes, Nisha. मैम, जितना भी हम प्लान करते हैं एक डे में करने के लिए वो कर लेते हैं, बट वो जो सेटिस्फैक्शन होता है वो चीज नहीं मिलती। कई बार ओवर थिंकिंग की वजह से ऐसा लगता है कि कोई हमसे ज्यादा कर रहा है एट ए टाइम, बट ऐसा होता नहीं है। बट इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग होती है कि सेटिस्फैक्शन फील नहीं होता कि मैंने इतना काम कर लिया है। और काम हो मतलब जाता ऐसा है। होता है कि मैं काम, यस मैम, ओके, बट तो सेटिस्फैक्शन कॉम्पिटिटिवनेस के लिए है। अगर कॉम्पिटिशन वाला थॉट प्रोसेस अच्छा है बहुत ज्यादा। जस्ट अ मिनट, मेरा बैटरी इशू है। तो कंपटीशन अगर आपका पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और आपको ड्राइव कर रहा है पॉजिटिवली, कहीं लेके जा रहा है पॉजिटिवली, देन इट्स परफेक्टली फाइन। बट अगर आपका वही कंपटीशन आपको नेगेटिव तरीके से मतलब नीचे गिरा रहा है, देन इट्स नॉट फाइन। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। सो ऑलवेज try to be competitive but in a positive way.
कोई और, तो आपके पास हमेशा कंपटीशन होगा, आपसे बेटर कोई ना कोई हमेशा होगा दुनिया में। तो उस Yes, थॉट ma'am. के साथ आप चलोगे तो कैसे, आपका सिर्फ एक ही है, कोई और आपसे बेहतर है और बेहतर परफॉर्म भी करेगा। आपका जो मतलब आपकी पावर सिर्फ इतनी है कि आप अपने वर्क में कंसिस्टेंट रहें, सामने वाले पे किसी पे आपका जोर नहीं है, ठीक है, अपने काम पे Yes, ही ma'am. आपका जोर है। सो इफ यू आर फिनिशिंग एनीथिंग परफेक्टली, पूरे टाइम पे सब कर रहे हो, प्लानिंग भी हो रही है, सब कुछ ठीक हो रहा है, देन बाकी सब कुछ ना छोड़ दो, और जो कुछ भी होगा ना वो सब कुछ बहुत अच्छे के लिए ही हो रहा होगा। अगर इफ यू विल Yes, क्लियर ma'am. इट, you have given your 100%, be sure about that, you have given your 100%, that's it। Yes, ma'am. ठीक है, और कुछ? Yes, ma'am. हाँ मैम बोल। ऐसा होता है ना समटाइम्स कि मतलब हम अपने वर्क को मतलब स्टडी को बैलेंस कर ले रहे हैं, बट ऐसा होता है कि जैसे हमारे फ्रेंड्स हैं या फिर कोई फैमिली है, तो उनको हमारी इमोशनली अभी मतलब अभी मेरा एग्जाम है और बट उन्हें हमें हमारी जरूरत है, तो हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होते और फिर इस वजह से काफी डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आई थिंक चीज को। सेम क्वेश्चन सिमरन का भी था, सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था जो उन्होंने पूछा था। उन्हें आपकी जरूरत है, पहले थोड़ा सा समझे कि उन्हें आपकी मैक्सिमम जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ठीक है, किस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। अगर अर्जेंसी है तो हम उसको मैम कुछ वो नहीं कर सकते। टाइम बैलेंस नहीं होता, मतलब कि मैं 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे से उठ के पढ़ना मतलब अपना काम शुरू करती हूँ और मतलब टाइम क्लैश हो जाता है हमारा, तो मैं 3 उनके बजे लिए सुबह अवेलेबल नहीं हो उठते हो? पाती। 3 बजे सुबह यस उठते हो मैम। अर्ली यस मॉर्निंग, मैम। और उनका यस टाइम क्या मैम। है काम शुरू करने का? सुबह 10 बजे से। ठीक है, 3 से 10 बजे तक आप अपना काम कर सकते हो फिनिश? यस मैम, काफी काम हो जाता है उतने टाइम में, बट फिर ऐसा होता है ना जब मतलब मेरा टाइम होता है, मतलब रात को मैं जल्दी सोती हूँ और रात को वो लोग फ्री होते हैं, तो वो टाइम पे मैं सो रही होती हूँ, फिर मैं बैलेंस नहीं होता मेरे से फिर। तो देखो, कम्युनिकेट करना शुरू करो, एंड इफ यू आर असर्टिव टू कम्युनिकेट कि मैं ये कर रही हूँ, मैं आप जो मैंने सेम आंसर सिमरन को दिया है, बात करना यस शुरू मैम। करो उन लोगों से कि वो क्या चाह रहे हैं, और बात करके ना बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। जब आप बात करोगे और वो बता देंगे आपको कि वो चाहते हैं कि थोड़ा वक्त उनके साथ ये टाइम का बिताओ, तो थोड़ा सा निगोशिएट करना शुरू करो। निगोशिएशन मतलब कि उनसे, जैसे हम सब्जी वाले से भाव ताव करते हैं ना हल्की फुल्की, वैसे ही आप अपने फैमिली वालों से भी हल्की फुल्की कर सकते हो। आप थोड़ा निगोशिएट करो कि मेरे पास ये वाला वक्त है, मुझे ना रात में नींद जल्दी आ जाती है, तो क्या हम इस वक्त टाइम स्पेंड करें? थोड़ा सा निगोशिएट करके देखो, थोड़ा टसल होगा, थोड़ा सा तो होगा, ठीक है, 2-4 बार होगा, एंड खुद को पुश करो, मैं चाहती हूँ इस वक्त मैं आपको हेल्प करूं, बताइए बताइए क्या जरूरत है, बताइए। मतलब आई एम जस्ट टेलिंग यू अबाउट, मतलब कुछ दिन पहले की बात है, माय फादर वांटेड टू लर्न समथिंग इन फोन पे, और बिकॉज हिज एज इज लाइक ही इज 65-70 years old, तो टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी इश्यूज हैं उनको, तो मैं उनको एक चीज बताती थी, कब, जब मेरे पास आधे घंटे, पूरा मेरा सेशन शुरू होते थे 9 बजे से और वो एंड होता था 6 या 8 बजे तक, और दोपहर में लंच के थोड़े से ड्यूरेशन में ही वांटेड टू लर्न समथिंग, और मैं जाती थी और वो कहते थे ये तुमने मुझे कल समझाया था, मैं भूल गया, एंड मैं फिर उन्हें जल्दी जल्दी फिर बताती थी, फिर अगले दिन फिर वो कहते थे मैं भूल गया, फिर मैं अगली जल्दी जल्दी उन्हें लंच के बाद उन्हें बताती थी कि फिर ना उनको मैंने 5 बार बताया है वही चीज। जरूरी इसलिए है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी नहीं जानते, तो उनको वहां डिफिकल्टी हो रही है। हम जब बच्चे थे, तो हम जब ग्रो कर रहे थे, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें तब बताई हैं, उस टाइम पे वो उनका टाइम बहुत बिजी था, जब वो जॉब करना शुरू किए थे तब हम बच्चे थे। सो हमें भी उनको समझना है और उन्हें भी हमें समझना है, पर वो हमें समझेंगे तब जब हम उन्हें अपनी चीजों को समझाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो यस मैम। आप, अगर आप सोचोगे उन्हें ये खुद समझना चाहिए, तो आप उनकी चीजों के लिए माइंड रीडिंग नहीं कर सकते, वो आपकी चीजों के लिए माइंड रीडिंग नहीं कर सकते। आपको माइंड रीडिंग को साइड में करना पड़ेगा, कम्युनिकेट, बात करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। गॉट इट? ओके मैम। यस मैम। परफेक्ट, थैंक यू। वेलकम। एनीबडी एल्स? We can take more questions, Asni, or not? Yes, why not? But I किसी का think बहुत बड़ा मैसेज है, I'm free all the time, but after that also I'm confused where my time waste. तो if you are free, then आपको वही समझना है अपना, जो मैंने टेबल 24 आवर वाला बताया है कि कितना टाइम फ्री है, क्योंकि अभी आपका गोल डिफाइन नहीं है शिवम।
आप फ्री हो और कंफ्यूज हो टाइम वेस्ट कहाँ हो रहा है, बहुत फ्री हो अगर, तो आपका कोई ऐसा गोल ही डिसाइड नहीं कर पाए हो अभी तक बहुत पर्टिकुलर, इसीलिए आप ज्यादा फ्री हो, ठीक है। आई एम कंफ्यूज, सो व्हेन आई हैव टू डू सम वर्क बट आई एम जस्ट इग्नोरिंग दैट वर्क एंड थिंक आई हैव सो मच टाइम सो दैट आई कैन पुट दैट वर्क ऑन अनदर डे, राइट, ये सबके साथ प्रॉब्लम है। बाय दैट माय वर्क इज नॉट कंप्लीटेड, ओके, वो प्रोक्रेस्टिनेशन का ही इशू है जो हमने डिस्कस किया। आपको वो काम आज ही शुरू करना ही पड़ेगा और आज तो करना ही करना पड़ेगा, एनी हाउ आज थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। जो आप कह रहे हो आपके पास फ्री टाइम है, उसमें सबसे पहले जो आपके पास 2 घंटे हैं, आप उसके शुरू के आधे घंटे में ही अपना उस टास्क का एक छोटा सा चंक खा लो, मतलब कि छोटा सा आप टास्क को कंप्लीट कर दो। फिर आपको लगता है कि मैं बाकी का कल करूंगा, तो बाकी का भले ही बाद में करना। आई एम गिविंग इट विद एन एग्जांपल, मैंने पहले भी कहीं और सेशन में भी ये चीज शेयर किया हुआ है। मुझे आती है ड्राइविंग, बट आई एम गिविंग यू जस्ट एज एन एग्जांपल कि आपको ड्राइविंग सीखनी है, आप सुबह उठते हो और सोचते चलो दोबारा सो जाते हैं, है ना, कल सीखेंगे ड्राइविंग। आपको पुश करना पड़ेगा कि चलो मैं ड्राइविंग नहीं सीखूंगा आज, बट मैं रजाई से निकल जाता हूँ। जैसे ही रजाई आप अपनी छोड़ोगे, उसके बाद आपको डिसाइड करना है चलो मैं रजाई से निकल गया हूँ, मैं फ्रेश हो लेता हूँ, फ्रेश हो लिए देन चलो आप उसके बाद बस मैं जाऊंगा बस गैरेज तक, उसको छू कर आ जाऊंगा, मैं नहीं आज ड्राइविंग करूंगा। फिर जैसे ही आप गैरेज में जाके गाड़ी को छुओगे, आप डिसाइड करोगे चलो मैं सिर्फ ड्राइविंग सीट तक बैठूंगा, आई विल नॉट गो, ओके ठीक है, बट मैं ड्राइविंग सीट तक बैठूंगा। एंड देन ड्राइविंग सीट पे बैठने के बाद सोचोगे बस मैं एक छोटा राउंड लगाऊंगा, इससे ज्यादा मुझे राउंड नहीं मारना, पर इतना इतना ही कर लूंगा चलो मैं। एंड जैसे आप निकलोगे, आप सोचोगे अरे यार कितना अच्छा दिन है, मैं खुश हो गया हूँ, इतना यहाँ तक आ गया हूँ, तो पूरा आधा घंटा ड्राइविंग कर लेता हूँ। एंड दिस इज हाउ यू चंक इट डाउन। आप एक छोटे छोटे कदम उठाओगे, छोटे कदम आपको उठाने ही हैं, और ये आप मतलब इफ you will take responsibility of your life, then only you will be successful. Everybody will be there to guide you. आपको हम बता सकते हैं, धक्के दे सकते हैं, पर आपको चलना खुद है और उड़ना भी खुद है, ठीक है। तो वो उड़ान आपको खुद भरनी है, पंख भी आपको खुद फैलाने हैं आगे जाके, पर यहां से वो उड़ान आप भर लो, बस हम उतना पंप करेंगे आपको, ओके। तो प्लीज start taking your steps one step at a time and you will climb the mountain. Somebody else? Ma'am, one more question. Yes, please. Ma'am, no ma'am, Simran. मैम स्ट्रॉन्ग एक रीजन कैसे क्रिएट करें, लाइक अगर एक टास्क करने स्टार्ट करते हैं तो फिर हम लोग कुछ टाइम तक उसको कंटिन्यू करते हैं, देन वापस से हम लोग का डेली रूटीन बैक टू वर्क हम लोग हो जाते हैं, उस टास्क के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं आ पाता है। एग्जाम्पल दो, जैसे यू आर एन NIFT एस्पिरेंट? यस मैम, और मतलब कॉलेज भी कर रहे हैं हम अभी, थर्ड ईयर है, तो उसमें क्या है ना कि एग्जाम मेरा दोनों साथ में ही है, दोनों एग्जाम साथ में? हाँ, विद इन 15 डेज के डिफरेंस में मेरा दोनों एग्जाम पड़ेगा। Okay, तो हम दोनों स्टडी साथ में कंटिन्यू कर रहे हैं, और कॉलेज का एग्जाम जैसे बहुत ज्यादा भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि सप्लीमेंट्री का प्रॉब्लम करता है, और निफ्ट के एग्जाम के लिए मतलब एक ऑप्शन मेरे को मिल जा रहा है कि 1 more ईयर है अभी मेरे पास। Exactly. तो इसके लिए क्वेश्चन क्या रेज किया आपने शुरू में मुझे कि एक स्ट्रॉन्ग रीजन कि मेरे को जैसे NIFT इसी ईयर ही मेरे को वो भी करना है, बट एक स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं आ पा रहा है, जिसे हम कर रहे हैं फिर कुछ टाइम बाद फिर मेरा कॉलेज स्टडीज कंटिन्यू हो जा रहा है और वो वाला NIFT का रुक जा रहा है। क्योंकि कॉलेज स्टडीज के लिए फैमिली ने भी बोला है और आपको लगता है सर्टेनिटी है, और है भी उसमें सर्टेनिटी, बट NIFT का जो रीजन आपने सोच के रखा है अभी उसको और डिफाइन नहीं किया है। थोड़े और एनालिसिस लो, एग्जाम्पल्स लो, NIFT क्लियर करने वाले कितने लोग हैं, कौन से, अपने इंस्पिरेशन को सामने रखो, पोस्टर्स खरीद लो या प्रिंट आउट निकाल लो। कोई एक्टर बनना चाहता है तो क्या करता है, सबसे पहले अमिताभ बच्चन की फोटो लेता है, चिपका लेता है दीवार पे, ठीक है। अब अगर आप NIFT क्लियर करना चाहते हो तो वो कौन लोग हैं? सब्यासाची है जिसके लहंगे बहुत लाखों में सेल होते हैं, बहुत लाखों में सेल होते हैं। रोहित बाल है, सो देयर आर सो मेनी पीपल, मनीष मल्होत्रा सर। So find out the names of all those people. मैं बोल रही हूँ, आपके चेहरे पे उसकी हंसी आ रही है, that means you are so much into this. So
टेक आउट अ प्रिंट आउट, आपको नेट पे उनके फोटोज मिल जाएंगे, अपने इंस्पिरेशन, क्यों आप इंस्पायर्ड हो वो लिखो, और क्या चाहिए आपको, वैसा क्यों बनना है, ये आंसर ढूंढना है आपको। ओके मैम। ठीक है। इफ देर आर स्टूडेंट्स दूसरे किसी सेक्टर में हो तो वो भी मुझसे बात कर सकते हैं, अगर वो चाहें तो उस पे भी हम बात कर सकते हैं। आपको उनका क्या अच्छा लग रहा है सिमरन, जो वो लोग बन के कुछ NIFTians हैं, फैशन डिजाइनर्स हैं, उनमें उनकी क्या चीज है जिसकी वजह से जो आप वहां ड्राइव हो रहे हो? अब आप सोचो इस चीज को, पैसा है, नाम है, लोग, दुनिया के लोग आप जानते हो, आप उनको देख के खुश हो रहे हो, सो डू यू वांट टू, मतलब अपना चेहरा वहां लगा के देखो। किसी फीमेल का ले लेना, किसी फीमेल फैशन डिजाइनर को समझ लेना, अपना फेस वहां लगा के देखो कि अगर लोग आपको देखेंगे तो दे विल टॉक द सेम थिंग्स अबाउट यू आफ्टर अ फ्यू इयर्स। Getting Yes it? ma'am. Yes. Is it okay? Perfectly Yes fine. ma'am. Otherwise Thank my you. details are already there, आपने क्लिक कर लिया होगा, I hope so. तो प्लीज मुझे मेल कर देना। आई थिंक यू आर थ्रू शशि सर, एंड Yes ma'am. हाँ, so connect with me, you can मतलब we'll connect, stay connected later on. Thank you so much. Anybody else? I think we are done for We're today. done? I know you all have a very busy schedule, ma'am, but still you gave us time because you know, the last session that you gave on let's set the goals was quite interesting, and even at that time students asked to arrange some session on time management, and that's why I came back again. And now you have again opened the doors, like how to not to get stressed out during exams. So we will again have that kind of session in future. That wasn't planned. That wasn't planned for many students. They were inquiring about the same from different places. Yes. तो मैम ये प्रॉब्लम तो खैर सभी को रहती है. All the students presently they are you know, facing lot of stress and a lot of competition. So that's the reason they need to make a balance. And Right. probably they are not aware and they are not able to manage all the things together. So that kind of guidance, if you are providing and if they are implementing it, so of course it would be very fruitful to them. So I am really thankful to you for providing all these guidance and information to our students. Thanks a lot, ma'am. And I request everyone to please fill up the feedback form. And one thing more, I would like to share a small token of respect and gratitude. And here is a Thank you so certificate much. for you from Sage University, Bhopal. Thank Hoping you to so have much. many more interesting sessions in future. Thank And you. Thank you so much. we can proceed further, like as per in the feedback form also I have specified the area where the students want the guidance, so that we can plan in future also. Sure, sure. Thank you so much everyone. Thank you so much for joining in, and I hope कि मैं value दे पाई हूँ इस पूरे session के through बहुत सारे students को, और भी कोई और join किया है किसी ने तो, and I hope to stay connected with all of you. हम जल्दी दोबारा मिलेंगे एक नए किसी session के साथ, and stay connected. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ma'am, thank you. Thank you, Varun. Thank you, ma'am.